Good afternoon, everyone. So decide first whether it is good morning or afternoon. So good afternoon. So some new faces, some old faces. Okay, so as we all know that today we are going to start the current affairs section of GS paper 1, right? So you must all have gone through with the trend analysis of current affairs, right? Already have you gone through with that? सबको पता है? एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है? So because we must have the understanding of the importance of the section, right? Please fast. The class timing is 3, right? Sharp. Okay, so here I'm taking the section current affairs, right? So if you look at the importance of current affairs section, you will find that for the past few years, the importance had been increased, other than some exception in 2016, right? 37 questions were asked, right? So 8 questions, 10 questions, 7, 19, 14, 10. So it means on an average there are 10 to 12 or 13 or 15, because it's very hard to demarcate that it's purely current affair question, right? So it's very easy to understand that without doing current affairs, because sometimes I will take only 5 minutes, right, regarding the importance of current affairs, the sources and significance. Okay, so let's start with the topic. Okay, so because it's very important, because some students are very new, okay, regarding the preparation. So there are some doubts regarding whether we should read newspaper or what should be the source of current affairs. ठीक है ना, डाउट रहता है, इज इट कॉमन डाउट? ठीक है, तो some students believe that, like some topper says that मैंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा या मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा फिर मेरा हो गया, ठीक है. सो दैट इज नॉट द जनरल टर्म, ठीक, दैट्स नॉट द जनरल केस, अंडरस्टैंड दैट, क्लियर. तो कई बार ऐसा भी होता है, कई बार प्रीलिम्स निकल जाते हैं, मेंस नहीं होते, इंटरव्यू नहीं होते, तो अल्टीमेटली क्या होता है, दैट्स डोंट गो विद थ्रू विद द एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स, ठीक है. सो करना क्या है कि when you go through the current affairs, I mean those sources which provide the current events, you will find that in this class itself, you will find that you will be covered with the Indian history, the Indian polity and governance, geography, environment, ecology. The environment, ecology, the separate section is taken by some other sir. So economy and other, like, so when you read current affairs, you will find that you are revising all the starting concepts. Is it clear? So first benefit is that. So and the current affairs section also it have its weightage. So अगर current affairs नहीं पढ़ रहे हो, I mean those questions which are directly asked, which is based upon the current events, so in that case you are missing some 5 to 7 questions, and along with that you will be missing which topics are also important. ठीक, please try to understand that. I will take just 3 minutes more, ठीक है, 2 minutes already have done, and we'll move to the topic. So समझना ये है कि करंट अफेयर्स क्यों पढ़ना है, इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है. व्हाट हैपेंड? Right, so first I will talk about green on green, not work. Okay, so first, sources. So generally what are the sources you prefer? Anyone? Very good. I was expecting the best one. The newspaper is inevitable source, you cannot go with that, ठीक है. देखो जिसके बाद दिमाग में आ रहा हो कि हो सकता है ऐसा, then it's exceptional, ठीक है, go with that, ठीक है, that's your choice. But in general you have to read the newspaper, and I will also tell the importance of newspaper during the set of classes. So we have 35 classes, ठीक है, 25 classes which is for general current events, and 5 classes for the schemes, right, schemes and laws and specific verticals, and 5 classes for mapping also, ठीक है. So newspaper provide the multiple sources, right. So sources are newspaper, and what else do you prefer for? Government website, very good. Okay, so how do you know that which website to prefer? Because of न्यूज़पेपर, राइट. न्यूज़पेपर के थ्रू पता चलेगा, ऐसा तो नहीं कि रैंडमली कोई वेबसाइट खोल लेते हो, चलो आज एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है.
तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमको पता चलना चाहिए कि सोर्स क्या है, कि विच टॉपिक यू शुड रीड फ्रॉम द गवर्नमेंट वेबसाइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में क्यों जाना है, क्योंकि हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि टॉपिक न्यूज़ में था, ठीक। एंड थर्ड कुड बी योर चॉइस ऑल्सो, ठीक है, सम मंथली मैगजीन्स ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट एंड सम अदर sources also, ठीक है, which are government published sources, ठीक। so these are the two are the inevitable sources, ठीक है। कौन कौन सा, न्यूज़पेपर एंड गवर्नमेंट वेबसाइट। सो अब मिशन प्रीलिम्स जो बैच है जब तक चलेगा, लगभग मार्च तक चलेगा, और आपको भी इसके बाद तक, मतलब मेन एग्जाम है, तो ट्राई टू गो थ्रू द न्यूज़पेपर अप टू अप्रैल। क्लियर, अप्रैल तक पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप प्रीलिम्स पे फोकस कर रहे हैं, प्रीलिम्स आ गया है, प्रीलिम्स आ गया तो इट्स नॉट द घोस्ट, ठीक है। करंट अफेयर्स भी जनवरी फरवरी मार्च और अप टू अप्रैल द फर्स्ट वीक, ठीक है, कुड बी आस्क्ड इन द coming prelims examination. So it does not mean that you have to completely focus upon what you have done and revise them. So you have to add some new content also. Is it clear for everyone? ठीक है, क्योंकि क्या करने जा रहे हैं पता होना चाहिए, तभी तो कर पाओगे, ठीक है। सो वेबसाइट। अच्छा, दूसरा इसमें यू हैव टू अंडरस्टैंड, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, सोर्स और क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इतने बेसिक सोर्स लेने हैं। न्यूज़पेपर कौन सा पता है, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, इसमें से आपकी चॉइस है। अगर बहुत ब्रिलियंट हो, बहुत टाइम है, तो दोनों पढ़ सकते हो, दैट्स वेरी गुड, ठीक है। अदरवाइज गो विद वन न्यूज़पेपर, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज द की, ठीक है, क्योंकि दो पढ़ने बैठोगे तो 4 दिन में बोर हो जाओगे कि पढ़ नहीं पा रहे, तो फिर बंद कर दोगे, ठीक है। डू नॉट टेक द एक्सट्रीम स्टेप, क्लियर। सो न्यूज़पेपर आउट ऑफ 2 चूज वन और एनी ऑफ देम, ठीक है, या दोनों पढ़ लो। इसके अलावा कोई भी न्यूज़पेपर तब प्रेफर करना जब हिंदू और एक्सप्रेस कवर कर चुके हो, ठीक है। कई बार लोग कहते हैं कि दैनिक जागरण पढ़ लें, लाइव मिंट पढ़ लें, ठीक है, पता नहीं कौन कौन से न्यूज़पेपर और भी नाम बताए थे, ठीक है। तो देख लेना, आपकी मर्जी, आपके पास बहुत सारा टाइम है तो कर सकते हो, ठीक। सेकंड थिंग कि सिग्निफिकेंस क्या है करंट अफेयर्स का, वो सब समझ लोगे तो यू विल फाइंड दैट व्हाई वी शुड गो थ्रू द करंट अफेयर्स। First significance is that when you go through the current events or the newspaper, you will find that you are revising GS paper 1, 2, 3 and 4 also, ठीक है। So it's not the prelims examination but it's a UPSC that includes prelims, mains और interview also। किसी को कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव तो नहीं है कि मुझे प्रीलिम्स करके दिखाना है, ऐसा तो नहीं। शादी तय हो रही है तो केवल प्रीलिम्स कर ले, शादी हो जाएगी, इसके बाद मेंस तो देखा जाएगा, ठीक है। इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि प्रीलिम्स आपका ऑब्जेक्टिव नहीं, आपका ऑब्जेक्टिव है यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना। तो प्रीलिम्स के मूड में रहोगे भी, इसके बाद भी आपको याद रखना है कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है इंटरव्यू क्लियर करना, राइट। सो ऐसा नहीं कि ये पूरे 4-5 महीने बस फैक्ट इंफॉर्मेशन फिलअप कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट, शुड नॉट बी लाइक दैट, यू हैव टू गो थ्रू द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑल्सो, ठीक है। इफ यू हैव गॉन थ्रू द लास्ट prelims examination paper, so you find that the largely the question was based upon the concepts and the pattern was also changed, ठीक है। so you have to find out the number of statements, so it's elimination technique बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गई थी, हैशटैग एलिमिनेशन टेक्निक। तो उसमें क्या हुआ, कैसे एलिमिनेट करेंगे, कैसे, दीज आर द शॉर्टकट्स, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, ये सब अट्रैक्ट करने की चीज़ें हैं, ठीक है, कि कैसे एलिमिनेट करेंगे। दे विल वर्क, दे विल जस्ट एनहेंस योर मार्क। अगर आप 1-2 मार्क्स से रह रहे हो, ठीक है, दिस शुड नॉट बी द स्ट्रेटेजी। बात समझ में आ रही है। तो अब जो आप निमोनिक याद करते हो, तो निमोनिक बनाते हो, तो दैट शुड नॉट बी द पर्पस ऑफ द लर्निंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, ठीक है। निमोनिक सपोर्ट करते हैं, निमोनिक ही भूल गए एग्जाम में तब ठीक, क्या बनाया था, मान लो कुछ निमोनिक बनाया और उसका एलिब्रेशन ही भूल गया क्या था, कि राम चला नाव से, तो नाव क्या था, राम क्या था, चला क्या था, यही सब भूल गए, बस राम चला नाव से याद है, ठीक। तो इट्स नॉट लाइक द, यू हैव टू गो थ्रू द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई the purpose of getting you learn the entire process, the importance of process, क्योंकि ultimately that's the very crucial stages have now started, ठीक। तो significance में आप रिवीजन होगा, ठीक है, all whatever you learned। दूसरा, you have to find out through the current affairs the importance of various topics, ठीक है। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैग, इट्स वेरी फ्रीक्वेंट इन न्यूज, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि कैग को तो रट के जाना है पूरा, ठीक है, कि मतलब कॉम्पोजिशन कैसे है, उससे रिलेटेड डायमेंशंस क्या क्या है। तो अभी जब क्लासेस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में व्हाट शुड बी द टेक अवेज एंड हाउ टू फेच द डेटा। बहुत सारा डेटा है, आप जो हम जो आपको पढ़ाते हैं, अगर आप एक्चुअली सोर्स देख लोगे ना तो आप खुद घबरा जाओगे कि 72 पेज की पीडीएफ आती है रिपोर्ट्स की, तो सब नहीं पढ़ना होता। यू हैव टू वेरी स्मार्ट एनफ टू फेच द डेटा। सो इन दैट केस व्हेन यू रीड न्यूज़पेपर, यू हैव टू फेच दोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स,
तो क्या होगा आपको, यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक एंड इट्स वेटेज ऑल्सो, ठीक है, कि कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है. इट मीन्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड विच टॉपिक हैज टू बी रिवाइज्ड मल्टीपल टाइम्स. You cannot revise all the topics multiple times. Clear? So you, and कौन बताएगा ये, या तो यूपीएससी बताएगा या फिर करंट अफेयर्स बताएगा. यूपीएससी कैसे बताता है, PYQs. Clear? So we have only two sources regarding the exams. First, from UPSC, that is PYQs, ठीक है, क्योंकि ऑथेंटिकेट सोर्स है. यूपीएससी ने एग्जाम लिया तो यूपीएससी बता रहा है कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे, और दूसरा यूपीएससी का सिलेबस. तो सिलेबस और पीवाईक्यूज को पढ़ते रहोगे, साथ साथ में करंट अफेयर्स. यू हैव टू डू अंडरस्टैंड द स्ट्रेटेजी और द द पैटर्न adopted by UPSC कि अब कैसे आगे एग्जाम लेगा वो. ठीक, तो थर्ड वन इज यू ऑल्सो गेट टू नो अबाउट द न्यू टर्म्स. ठीक है, तो न्यू टर्म्स भी समझ में आएंगे कि कौन कौन से न्यू टर्म्स आ रहे मार्केट. तो सर्कुलर इकोनॉमी न्यू टर्म समझ में आया, तो समझ में आना चाहिए आपको कि सर्कुलर इकोनॉमी है क्या, नया टर्म है. तो उसको समझ, अब देखो आप जो हो सकता है पढ़ रहे हो स्टैटिक पोर्शन, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द न्यू कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स इन योर स्टैटिक पोर्शन, राइट. सो दैट्स व्हाई, एंड हो सकता है ऐसा कि आज जो पढ़ाया और कल न्यूज में दूसरी चीज आ गई हो, तो यू हैव टू कीप अपडेट योर नोट्स अकॉर्डिंगली. सो दिस इज हाउ यू कैन कीप योर notes update accordingly. Now the third point is that the nature of expression of questions related to current affairs. करंट अफेयर से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे एक तरीका हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है, रिलेटेड टू द करंट इवेंट्स. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट एंड ऑल. सो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन, और दूसरा द करंट इवेंट्स tells us also about the aspect of the static portion that should be, yes, that should be revised multiple times. ठीक है, तो that's also suggest the static part. ठीक है, for example, महाउपनिषद के बारे में क्वेश्चन आया आपके पास, तो आप कहोगे कि सर महाउपनिषद तो पढ़ाया नहीं है क्लास में, या महाउपनिषद तो हमने पढ़ा भी नहीं. और अगर महाउपनिषद पढ़ना है तो वी हैव टू गो थ्रू द एंटायर हिस्ट्री ऑल्सो. ठीक है, तो यू हैव टू कवर अप द बुक्स फ्रॉम JNU एंड DU ऑल्सो. ठीक है, सो दैट विल टेक द 5-year प्लान फ्रॉम यू गाइज. ठीक है, फॉर UPSC. तो इसमें अब ये महाउपनिषद क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्यों? हाँ, तो WCR क्लास हमने करी, तो G20 हमने पढ़ा, तो हमें समझ में आया कि महाउपनिषद क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि महाउपनिषद से क्या टर्म लिया गया, एंड व्हाट इज वसुधैव कुटुंबकम विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल रिलेशन, दैट इज द थीम ऑफ G20. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज जो कि अब ये तो कैसे आ सकता है, अब क्या आया है. Have you gone through the PYQs? Have you gone through the topic 64 Yogini Temple in 2021? Set A, question number 61. So why it was asked? क्यों पूछा गया 64 योगिनी टेम्पल? अब जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तो सब कितने टेम्पल्स पढ़ लें सर, क्या क्या पढ़ लें टेम्पल्स के बारे में. तो ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ना है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 64 योगिनी टेम्पल क्यों पूछा गया. और जब ये समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे कि एक्चुअली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, और करंट अफेयर्स को कैसे स्टैटिक हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से रिलेट करके वी कैन गो थ्रू विद द मल्टीपल रिवीजन ऑल्सो एंड क्रैक द पेपर. ठीक है, तो दिस इज नॉट योर कैपेसिटी टू गो थ्रू द एंटायर स्टैटिक पोर्शन. ठीक है, नहीं होती कैपेसिटी. और वाई पीपल get through the examination in 1 year or hardly 2 years? Why? Because they understand the logic behind the question. क्वेश्चन क्यों पूछा गया. तो अब कुछ मुझे को बताएगा कि 64 योगिनी टेम्पल क्यों पूछा गया था, क्योंकि 2019 में एक प्रोजेक्ट आया था. ठीक है, द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसके थ्रू पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट को बिल्ड करना था. तो न्यू पार्लियामेंट को जब बिल्ड करना था तो ओल्ड पार्लियामेंट को
चेंज करना होगा न्यू पार्लियामेंट में, राइट? सो बोथ द facts related to the new parliament is important and fact related to old parliament is also important. So it is believed that the model, the design of old parliament were based upon, is it clear? ठीक है, तो न्यू डिजाइन और ओल्ड डिजाइन दोनों समझ लोगे तो एक क्वेश्चन तो निकल ही आएगा। क्लियर? चलो अब एक क्वेश्चन और लेते हैं एग्जांपल, फिर सीधे नोट्स सीधे फैक्ट्स पे आते हैं जो हमको पढ़ना है। ठीक है, कि अब अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आए कि थिरुकुरल बुक authored by थिरुवल्लुवर, राइट? अब ये क्वेश्चन क्यों आएगा? क्योंकि एंटायर तमिल लिटरेचर से थिरुकुरल ही क्यों पूछा गया? क्योंकि न्यूज में था। तो एनीबॉडी हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग थिरुकुरल बुक रिटन बाय थिरुवल्लुवर? ठीक है, दिस वन ऑफ द बुक ऑफ तमिल लिटरेचर। ठीक है, सो जो पट्टू पट्टू एंड पथिनेन किलकनक्कू जो 18 टेक्स्ट बुक का कंपाइलेशन है उसमें से एक इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, हमेशा पढ़ोगे तो यू विल फाइंड दैट थिरुकुरल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बुक, राइट? लेकिन क्यों नहीं अभी यही क्यों पूछा गया? हाँ, क्योंकि ये न्यूज में था, बिकॉज व्हेन वी फाइंड दैट देयर वाज अ फोरम ऑफ इंडो पैसिफिक कंट्रीज समिट हेल्ड इन पपुआ न्यू गिनी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी presented the copy of Thirukkural book to the Prime Minister of Papua New Guinea. That was very news because it was translated into the native language of Papua New Guinea. समझ में? तो अब ऐसे आप समझोगे कि एक्चुअली अब फिर क्या होगा कि जब आप ये पढ़ने बैठोगे तो आप क्या करोगे? अगर आपको नहीं पता है आइडिया, न्यूज़पेपर नहीं के थ्रू नहीं गया तो आप क्या करोगे? सारी बुक और सारे ऑथर पढ़ने बैठ जाओगे। ठीक है, तो अतित्व को कहेगा 18 जो बुक्स हैं उनके सबके नाम बोलना मुश्किल है, याद कैसे करोगे? ठीक है, सो इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द करंट अफेयर्स क्लासेस। ठीक है, इसकी क्लासेस की इंपॉर्टेंस नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, लेकिन करंट अफेयर्स जरूर पढ़ते रहो। ठीक है, जो भी सोर्स आप यूज कर रहे हो। ठीक है, सो दैट्स द इंपॉर्टेंस, दिस इज हाउ यू विल गो थ्रू द स्टैटिक पोर्शन एंड अंडरस्टैंड द करंट इवेंट डायरेक्टली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आप चलते टॉपिक पे एंड देन वी विल फाइंड आउट द 2 points behind the every topic. ठीक है, that is the conceptual clarification with respect to the topic, and the second thing would be the direct facts. ठीक है, तो कौन कौन से डायरेक्ट फैक्ट्स है? तो जैसे हम न्यू पार्लियामेंट की बात करेंगे तो देखो दिस इज द इनॉग्रेशन ऑफ द करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स क्लास, तो द फर्स्ट टॉपिक वुड बी द इनॉग्रेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट, राइट? सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ द टेकअवेज फ्रॉम द first topic, new parliament house, right? So this was inaugurated in May this year 2023, right? So this is how the structure of new parliament look like. ठीक है, so कैसा triangular shape है? ठीक, तो triangular shape में एक आगे द्वार, एक दाएं द्वार, एक बाएं द्वार, इस तरीके से। तो there are 3 main gates। ठीक है, there are total 6 gates। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस क्या है गेट्स में क्यों बता रहा हूँ? इसलिए क्योंकि कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट? अब वो फैक्चुअल क्वेश्चन डिजाइन कैसे होंगे ये भी बता दूंगा अभी आपको। सो द इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग पार्ट ऑफ द रिवैम्प्ड सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। कैन यू स्विच ऑफ दैट ट्यूब? हाँ, फर्स्ट वन फ्रॉम लेफ्ट। हाँ, फाइन, थैंक यू। सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिल्डिंग डिजाइन्ड बाय आर्किटेक्ट बिमल पटेल। तो जहां पर अंडरलाइन और हाईलाइट किया गया, दैट्स द इंपॉर्टेंट फैक्ट, यू नीड टू गो थ्रू विद दैट। सो दिस इज द ओल्ड पार्लियामेंट एंड द न्यू पार्लियामेंट, द स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग टुगेदर। तो नया पार्लियामेंट और ओल्ड पार्लियामेंट जो है दोनों का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है ये। दिस इज द सेंट्रल विस्टा, राइट? सो सेंट्रल विस्टा को रीडेवलप करना था, तो उसमें देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चर व्हिच आर डेवलप्ड न्यू, व्हिच आर टू बी डिमोलिश्ड एंड सम आर एग्जिस्टेड एज इट इज। ठीक है, तो सम हैज टू बी मेंटेन्ड एज इट इज। तो अब देखो यहाँ पर एक बार पिक्चर समझ लो क्या है, जैसे आपको याद हो जाएगा कि न्यू स्ट्रक्चर में क्या क्या डेवलप हो रहा है और कौन कौन सा नहीं। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि अंडर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर डिमोलिश्ड और सपोज टू बी रीडेवलप्ड, राइट? सो जो पार्लियामेंट है वो नहीं बनेगी। देखो दिस इज इट विजिबल ऑनलाइन, राइट? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कलर, ठीक है, पिंक और ऑरेंज। ठीक है, सो ऑरेंज कलर जो आप देख रहे हो सारे ये नए स्ट्रक्चर बनेंगे। तो आपको ये देखना है कि नए स्ट्रक्चर क्या क्या बन रहे हैं। तो पहला पार्लियामेंट, ओल्ड पार्लियामेंट के साथ में सिंगल कॉम्प्लेक्स इन विच यू विल फाइंड द 2 सेट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ओल्ड पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस हॉल बन रहा है, नेशनल आर्काइव, सेक्रेटरिएट बिल्डिंग ऑल्सो। ठीक है, और जो 7 रोज
रेस कोर्स रोड पे जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है दिस आल्सो बीइंग शिफ्टेड हियर। इसका मतलब ये है कि अभी तक प्राइम मिनिस्टर काफी दूरी पे रहते थे, ठीक है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हाउस और जो सेक्रेटरीट है उससे काफी डिस्टेंस पे। अब क्या होगा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस, नाउ प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस इज आल्सो शिफ्टेड हियर। तो सामने वाइस प्रेसिडेंट रेसिडेंस है और उसके जस्ट फ्रंट अपोजिट साइड, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस है। दिस इज द प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस, दिस इज द वाइस प्रेसिडेंट रेसिडेंस, और यहाँ पर प्रेसिडेंट। तो अब कभी अर्जेंट मीटिंग होगी तो सब लोग मिल सकते हैं, ठीक है। तो घर से निकले और मिल लिया आपस में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तो दैट्स द रेशनली बिहाइंड दैट, दैट्स द efficiency would be improved, and the second thing is that this entire structure was very old, ठीक है। तो हम देखेंगे कि और नया नया क्या रेशनली इसके पीछे। सो ये इंडिया गेट और यहाँ से राष्ट्रपति भवन, तो कुछ बिल्डिंग्स हैं। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, जो साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, ठीक है। तो अब ये एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर हैं और हम इनमें देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर वो डिमोलिश होंगे, ठीक है। तो जो नए बन रहे हैं उसमें पार्लियामेंट हाउस, ठीक है, कर्तव्य पथ, राजपथ, ठीक है। तो देखो इट कुड बी पॉसिबिलिटी दैट यूपीएससी कैन आस्क सच क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर डिमोलिश्ड अंडर दिस प्रोजेक्ट और विच आर द new building to be constructed. So other than parliament house there are kartavya path, common secretariat, then central conference center, then new residence and office for vice president, and new resident and office for prime minister. तो prime minister का office and जो house है वो भी change हो रहा है, right? Then we'll find out the स्ट्रक्चर टू बी रिपर्पस्ड ओल्ड पार्लियामेंट हाउस। रूप रिपर्पस मतलब इनका पर्पस चेंज होगा, ठीक है। तो नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक विल बी म्यूजियम, प्रेसिडेंट गार्डन शुड बी द म्यूजियम, एंड ओल्ड पार्लियामेंट हाउस वुड बी आल्सो द म्यूजियम। नाउ स्ट्रक्चर्स टू बी रिटेन्ड एज इट इज, तो इंडिया गेट चेंज नहीं होगा। एंड द सेकंड थिंग इज दैट किसी भी बिल्डिंग की हाइट, ठीक है, जो नए बनेंगे वो उनकी हाइट इंडिया गेट से ज्यादा नहीं हो, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस थे कि कोई भी बिल्डिंग ऐसी नहीं बनानी है जिसकी हाइट इंडिया गेट से ज्यादा हो। तो इंडिया गेट, नेशनल वॉर मेमोरियल, रेल, सॉरी हम इधर थे, कहाँ थे, यही थे, हाँ ठीक। तो नेशनल वॉर मेमोरियल, रेल भवन और वायु भवन, ठीक है, ये सारे ऐसे रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन के लिए केवल है, बट आपको ये जानना है कि जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, जैसे पार्लियामेंट है, सेंट्रल सेक्रेटरीट है, प्रेसिडेंट्स हाउस है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, ठीक है, तो इनका क्या होना है, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सो देखो लॉजिक है सिंपल, अगर आपको नहीं भी पता है तो अगर कुछ ऑप्शन दिए भी होते हैं कि इंसफिशिएंट सिटिंग स्पेस, ठीक है, क्योंकि दैट सिटिंग स्पेस वाज बेस्ड अपॉन द ओल्ड डिलिमिटेशन, ठीक है। अब न्यू डिलिमिटेशन होगा आफ्टर 2026, तो सीट्स बढ़ेंगी, तो सीट्स बढ़ेंगे तो खड़े तो नहीं रहेंगे, बैठने के लिए जगह होनी चाहिए, तो बैठने के लिए अभी सफिशिएंट स्पेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 1272 सीट्स होंगी, ठीक है। इट्स लाइक वी आर डिस्कसिंग ओवर द एनी आर्किटेक्चर और वी बिलोंग टू एनी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, राइट। सो बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि ये एक्चुअली इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहले 540 मेंबर की सीट हुआ करती थी, अभी कितनी लोकसभा में होगी, 888, ठीक है। तो 888 मेंबर्स बैठ सकते हैं लोकसभा में, ठीक है। एंड फॉर राज्यसभा देयर इज 384 सीट्स, ऑल टुगेदर देयर कुड बी जॉइंट सिटिंग, तो इसलिए तो टोटल सिटिंग स्पेस है 1222, ठीक है। तो अभी केवल समझ लो, बाकी आप जो डेटा है सारा आप रिवाइज करोगे जब पीडीएफ तो फिर से देख लेना, ठीक है। तो ऑब्सोल्यूट कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर, तो टेलीकम्युनिकेशन दो दैट वाज बेस्ड अपॉन द ओल्ड स्ट्रक्चर, तो सारे स्ट्रक्चर न्यू हो रहे हैं, वाईफाई होगा, आईपैड मिलेगा एंड ऑल दीस थिंग्स, ठीक है। सेफ्टी कंसर्न, तो जब ये पार्लियामेंट बनी थी तब दिल्ली वाज अंडर द सिस्मिक जोन 2, अभी सिस्मिक जोन 4 में है, तो इट्स मोर प्रोन टू द earthquake, so that's why building need to be the more earthquake sustainable, fire safety and all, ठीक है। inadequate workplace for employees, तो जो पहले कॉरिडोर हुआ करता था उसी में ऑफिस बना दिए गए, ठीक है, जो सेक्रेटरीट के ऑफिस थे, तो अभी क्या है, ऑफिस सेपरेट बनाया गया, ठीक। सो दैट्स द इंपॉर्टेंस की टेकअवेज। तो प्रोजेक्ट अंडरटेकन, डिजाइन वाज इंप्लीमेंटेड बाय द एससीपी अहमदाबाद एंड द कंस्ट्रक्शन वाज डन बाय टाटा, ठीक है। तो दैट टू मेजर इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व। ट्रायंगुलर शेप होगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा क्योंकि लार्जली जो ग्रीन कंस्ट्रक्शन टेक्निक है वो यूज हुई है, सोलर पावर का सिस्टम है, 30% इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी, ठीक है। अर्थक्वेक सेफ होगा, सिस्मिक जोन 4 में आता है, ठीक है। तो आप ज्योग्राफी को रिवाइज करोगे, सिस्मिक जोन 4 इंपॉर्टेंट है दिल्ली के लिए, ठीक है। लोकसभा की थीम, ठीक है, तो थीम भी मैच द पेयर, ठीक है। तो लोकसभा की थीम कैसी है, पीकॉक थीम है। राज्यसभा की थीम कैसी है, वेरी गुड, लोटस थीम, ठीक है। नाउ थीम के साथ साथ जो सीट से मैंने बता दी 384 राज्यसभा में, 888 लोकसभा, टोटल 1272, क्लियर, पास तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पिकॉक थीम देख लो कैसी थी, ठीक है। तो कुछ ऐसा कि अभी तो आप लोग सब पता चल चुका होगा ना, 6-8 महीने हो चुके हैं। तो जो अच्छा, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई इफ यू लुक एट द टू हाउसेस, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई देयर इज लोकसभा प्रोसीडिंग गोइंग ऑन और राज्यसभा प्रोसीडिंग गोइंग ऑन, कारपेट कलर, राइट। सो व्हाट इज द कारपेट कलर ऑफ लोकसभा, ग्रीन और रेड, ठीक है, दिस इज लोकसभा, ठीक है। एंड द लोटस थीम इज एंड एम्बेडेड इन राज्यसभा, right? Now
one constitution hall is also under in this complex. Then material across India, right? So if you are asked about the match the following, so in that case like Sarmathura और दिया धौलपुर, इसके बाद दिया है कि सपोज लाखा विलेज राजस्थान, ठीक है? तो वाई दीज विलेजेस आर, समझ में आया? या कि ये अगर पूछा जाएगा तो क्यों पूछा जाएगा, ठीक है? बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट वाज गिवन टू द कंपनी दैट हैज फेच्ड दिस material from there, right? Now Bhadohi weavers from Uttar Pradesh, they were actually hired for the traditional hand knotted carpets. Then Gandhi statue, ठीक है, that's also placed. तो गांधी स्टैचू पहले भी था, वो रिलोकेट किया गया. Then national symbols also there, ठीक है? So कौन कौन से सिंबल्स हैं? The land capital of Ashoka, then सत्यमेव जयते, that's written on the entrance, and the Ashoka Chakra also, ठीक है? तो सत्यमेव जयते had been carved over the entrance. तो सत्यमेव जयते is taken from which उपनिषद? मंडूक उपनिषद. मंडूक उपनिषद इज, देखो आप समझना है कि कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन. सत्यमेव जयते फिर से न्यूज में आएगा. सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम द मंडूक उपनिषद, एंड मंडूक उपनिषद इज द एडजंक्ट ऑफ विच वेदा? बस यहाँ पे फंस जाओगे, ठीक है? तो अब कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे, और ऐसे में पेयर पूछ लेगा तो और फंस जाओगे. तो इसलिए ये सब चीजें जो फ्रीक्वेंटली न्यूज में रिवाइज करनी है, ठीक है? तो द मंडूक उपनिषद इज द एडजंक्ट ऑफ अथर्ववेदा, ठीक है? नाउ गोल्डन स्केप्टर इज आल्सो प्लेस्ड. तो दिस इज द एंटायर टॉपिक Sangol, ठीक है? We have to understand the importance of Sangol, historical perspective related to Sangol. तो Sangol पूरा एक टॉपिक है, वो अभी करेंगे हम, ठीक है? तो Sangol इज अ गोल्डन स्केप्टर, ठीक है? फोटो नहीं, आगे देखते हैं, ठीक है? तो एक स्टिक टाइप की होती है Sangol, ठीक है? वो प्लेस की गई है कहाँ? लोकसभा, राज्यसभा? लोकसभा, ठीक है? स्पीकर के जो चेयर है उसके पास में प्लेस की गई, ठीक? सो द सेंगोल गिवन टू द, जब देखो अब इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन क्योंकि अलग टॉपिक है तो मैं बता दूंगा, तो फिर आगे टॉपिक पूरा करेंगे, ठीक है? तो सेंगोल अभी फिलहाल के लिए हैव पेशेंस, इसको पॉज कर दो यहीं पे, ठीक? आगे डिजिटल, तो ऑल रिकॉर्ड्स, हाउस प्रोसीडिंग एंड ऑल, दे हैव द डिजिटल ऑप्शन आल्सो, ठीक है? तो रिकॉर्डिंग वुड हैव मोर एफिशिएंट वे ऑफ रिकॉर्डिंग थिंग्स, मोर डेटा स्टोरेज, एंड आईपैड्स एंड ऑल दे वर गिवन टू द एमपीज, ठीक है? Now there are two galleries, major galleries, Shilpa galleries and Sthapatya gallery. So Shilpa gallery actually provides the information of the crafts and works also, ठीक है? तो that the textile installation, and the Sthapatya gallery, Sthapatya exhibit the iconic moments of India, ठीक है? तो इसमें सारे जो carved out किए गए monuments को, जिससे कि जो भी विजिटर हो उनको information मिले जो इंडिया के monuments है. तो there are two galleries, कौन कौन सी important galleries? Shilpa gallery and Sthapatya, right? So स्थापत्य इज द हिंदी टर्म, ठीक है? तो आर्किटेक्चर का स्थापत्य कल, ठीक है? स्थापत्य, राइट? वास्तु शास्त्र, तो देयर आर 3 मेजर गेट, राइट? कौन कौन से? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार एंड कर्म द्वार, ठीक है? तो नॉलेज गेट, पावर गेट एंड एक्शन गेट, अदर देन 3 माइनर गेट्स, ठीक है? तो 3 मेजर गेट्स, 3 माइनर गेट्स, अलोंग विद द नंबर ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स को देखो, जहां मैं बोलूं कि मेमोराइज कर लेना है तो उसको याद ही कर लेना है, ठीक है? कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? हाँ, नेमोनिक बना सकते हो. तो कौन कौन से एनिमल्स को डिपिक्ट किया गया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, ठीक है? तो एलिफेंट, हॉर्स, मकर, ठीक है? मकर इज नॉट क्रोकोडाइल, ठीक है? क्योंकि ये एक मैथोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है? जैसे मकर है, शार्दुल है, तो शार्दुल हम शेर समझते हैं, एक्चुअली मैथोलॉजिकल एनिमल है, ठीक है? तो एलिफेंट, हॉर्स, तो यहाँ पर जो एलिफेंट, हॉर्स, मकर, स्वान, ठीक है? गरुड़ एंड द शार्दुल, ठीक है? तो ये एनिमल्स को यूज किया गया, तो इनको एक बार याद कर लेना, ठीक है? कौन कौन से एनिमल्स हैं, ठीक है? हिस्ट्री ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट हाउस, तो यहां से स्टैटिक क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज डिजाइंड बाय, ठीक है? कौन कौन? हर्बर्ट बेकर, ठीक है? एंड एडविन लुटियन. और साथ में एक स्टेटमेंट होगा कि राष्ट्रपति भवन इज डिजाइंड बाय, और अगर हर्बर्ट बेकर का नाम साथ में दिया हो तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है? और सेक्रेटरिएट, नो सॉरी, द सेक्रेटरिएट डिजाइन्ड बाय हर्बर्ट बेकर, ठीक है? तो 3 इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है उनको याद कर लेना, ठीक है? यू हैव टू मेमोराइज दैट्स द पार्लियामेंट इज डिजाइन्ड बाय एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर, ठीक है? तो व्हेन यू गो थ्रू द आर्ट एंड कल्चर, यू विल फाइंड द मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर टेक्निक इन विच यू विल लर्न अबाउट द टेक्निक्स डिजाइन्ड बाय द ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, राइट? सो 19th-20th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, राइट? जब ये सब बनना स्टार्ट हुआ, सेंट्रल विस्टा के थ्रू बनाया इंडिया, ठीक है? दिल्ली में सेंट्रल विस्टा 1911 में, जब किंग जॉर्ज ने कोलकाता से, ठीक है, मतलब जो कलकत्ता उस टाइम का था, कलकत्ता से दिल्ली अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी, तो कहा है कि हमें यहाँ पे बिल्डिंग स्ट्रक्चर चाहिए, जिसको नाम दिया सेंट्रल विस्टा, ठीक है? 1911 से स्टार्ट हुआ और 2 लोग को असाइन किया, ठीक है? एडवर्ड लुटियन एंड हर्बर्ट बेकर, दैट यू हैव टू डिजाइन एंड आर्किटेक्ट द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल विस्टा, सो दे हैव कैरी फॉरवर्ड देयर टास्क. तो फर्स्ट
1912 से स्टार्ट हुआ, 1927 में पार्लियामेंट बनकर तैयार हो गई, ठीक है, और सेक्रेटरीट ये सब बाद में इनॉग्रेट हुआ, ठीक है. सो द एंटायर स्ट्रक्चर वाज led with respect to the design and architect is led by Edwin Lutyens and Herbert Baker, ठीक है. So and it is believed that the building of the old Indian parliament may have been inspired from 64 योगिनी टेम्पल. 1927 में वाइसरॉय लॉर्ड इरविन थे उस टाइम पे, तो इनॉग्रेट हुआ था, ठीक है. एंड फिर जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो फर्दर सेशंस थे वो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग से स्टार्ट हुई. थर्ड सेशन था, थर्ड सेशन से स्टार्ट हो गया, 2 सेशन कोलकाता में हो चुके थे, ठीक है. सो 26 जनवरी 1950 ऑनवर्ड्स इट्स आवर पार्लियामेंट. क्लियर. सो नाउ कमिंग टू द सप्लीमेंट्री टॉपिक. अब देखो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के सप्लीमेंट्री टॉपिक है ये, जो हमें एक पूरे टॉपिक की तरह पढ़ने, ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया was construct new parliament of India was constructed under the Central Vista Development Project, redevelopment project, ठीक है. और उसके साथ में सेंगोल पूरा टॉपिक पढ़ना है, 64 योगिनी टेम्पल पूरा टॉपिक पढ़ना है. सो दे आर द एक मेजर टॉपिक ऑफ द मेजर टॉपिक, ठीक है. तो मेजर टॉपिक्स हैं ये. सो हियर नाउ अगेन you have to go through the history of the Central Vista project. तो 1911 में King George V made an announcement in Delhi Darbar that we have to shift our capital from Calcutta to Delhi. Delhi Darbar was hosted to mark the coronation of King George V, right? So Edwin Lutyens, again मैं सब बता चुका हूँ ये फिर से. तो Herbert Baker is also the architect of the Union Building in Pretoria, South Africa. तो प्रेटोरिया में जो पार्लियामेंट है this also designed by Herbert Baker. और Herbert Baker जब इंडिया में है तो क्या कुछ नया करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि 64 योगिनी टेम्पल उनको बहुत यूनिक लगी और कहा ये डिजाइन कॉपी कर दो. तो ऐसा नहीं कि सब कुछ जेन्युइन होता है, कई बार कॉपी भी होता है, लेकिन बाद में पता चलता है, ठीक है, राइट. सो द और इट इज दैट्स एलिजिडली सेड, ठीक है, क्योंकि हर्बर्ट बेकर तो कभी नहीं कहेंगे ना कि हमने कहां से कॉपी किया, या लुटियंस कभी नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन हाँ इट इज सेड दैट इज बेस्ड अपॉन द टेम्पल डिजाइन, राइट. सो द पार्लियामेंट हाउस और सिमिलर लैंग्वेज क्वेश्चन में भी यूज की गई है, ठीक है. तो पीवाईक्यू देखेंगे भी तो देखेंगे कि इट इज बिलीव्ड दैट, ठीक है. सो नाउ ये हम सब कर चुके हैं, ठीक है. नाउ द सेंट्रल विस्टा वाज डिजाइन्ड बाय द पार्लियामेंट हाउस, तो लुटियंस एंड बेकर, राष्ट्रपति भवन बाय लुटियंस एंड सेक्रेटरीट बाय बेकर, ठीक है. अब देखते हैं सेंट्रल विस्टा, ये बात थी अभी तक जो हमने पढ़ा, दैट्स अबाउट सेंट्रल विस्टा. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट दैट वाज लॉन्च्ड इन 2019, ठीक है. सो दैट नाउ टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्लियामेंट बिल्डिंग, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट एंड रिवैम्पिंग ऑफ द 3 किलोमीटर लॉन्ग विस्टा और राजपथ, ठीक है, अलॉन्ग विद अदर स्मॉलर बिल्डिंग्स. क्लियर. सो एम डिस्कस कर चुके हैं, बिगर देन द ओल्डर वन. तो न्यू पार्लियामेंट कैसी होगी, नई बड़ी होगी, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होगी, ठीक है. देन हाइट, नो न्यू बिल्डिंग विल सरपास द हाइट ऑफ इंडिया गेट. कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन टाटा प्रोजेक्ट, ठीक है. ये सारे फैक्ट्स हैं, टेक अवेज जो हमें याद करके जाने हैं. डिजाइन एचसीपी डिजाइन, आर्कियोलॉजिकल एसेट, एक्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग विल बी कंजर्व्ड एज म्यूजियम. कन्वर्जन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स अगेन कन्वर्ट इनटू म्यूजियम, ठीक है. देन इंडिजिनस आर्किटेक्चर, तो नाउ द 4 फ्लोर फर्स्ट एंड सेकंड न्यू पार्लियामेंट में 4 फ्लोर होंगे, ठीक है. बिल्डिंग टू बी डिमोलिश्ड, निर्माण भवन, विज्ञान भवन एंड अदर बिल्डिंग्स व्हिच आर शेयर्ड इन अवर टेबल देखा था, ठीक है, उसमें कई लिस्ट थी, वो देख लेना एक बार, ठीक है. सो नाउ 64 योगिनी टेम्पल. देखो अभी तक जो पूछा, जो पढ़ा हमने, उसमें कोई डाउट है किसी तरीके का? भी समझ लेना कैसे अब हमको करंट अफेयर्स पढ़ना है और कैसे हमें फैक्ट्स निकालने हैं उसमें, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो एसोसिएटेड टॉपिक होंगे. क्लियर सबको? एनी डाउट, एनीवन? ओके. नाउ कमिंग टू द 64 योगिनी टेम्पल, ठीक है. तो अब टेम्पल देखो, लग रही पार्लियामेंट, ठीक है. ऐसा लग रहा है कि आज से 100 साल के बाद हम अपनी ओल्ड पार्लियामेंट को देख रहे हैं, ठीक है ना, राइट. सो जैसा रेप्लिका, राइट. सो और वी कैन से द पार्लियामेंट बिल्डिंग इज रेप्लिका, ठीक. तो कुछ इस तरीके से 64 श्राइन्स बनी हुई हैं, ठीक है. 64 योगिनी एंड डेडिकेटेड टू द शिवा ट्रेडिशन, याद रखना, ठीक है. तो शिवा ट्रेडिशन पे बेस्ड है ये, ठीक है. सो है कहां पर ये? एक्चुअली दिस इज द मोरेना डिस्ट्रिक्ट, एमपी, विलेज पथौली, मितौली विलेज नियर पथौली, ठीक है. सो इट्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड दिस बिल्डिंग एज द एसेट फॉर एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, right, already declared it. It means that this structure is given funding from Archaeological Survey of India regarding the maintenance. Clear? Okay. Now, so किसने बनवाया था? तो एक इंस्क्रिप्शन मिला है वहीं, ठीक है, मुरैना में, जो कहता है कि that is was built by the कच्छप घाट किंग देवपाला, ठीक है. तो हो सकता है कि कच्छप घाट नहीं पढ़ा हो, ठीक है. तो
क्योंकि देखो ऐसे हैं कि छोटे छोटे किंगडम्स थे, ठीक है, तो जब डिसइंटीग्रेशन, हमने जब एंशिएंट मिडिवल पढ़ा तो देखा कि कई बार किंगडम्स डिसइंटीग्रेट हुए, ठीक है, तो कुछ बड़े किंगडम्स बने और कुछ बहुत छोटे किंगडम बने। तो अगर सारे छोटे किंगडम्स बनने हम पढ़ने शुरू कर देंगे तो आपको पता है ना कि जब जब इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट हुआ तो कितने प्रिंसली स्टेट्स को हमने इंटीग्रेट किया? 500 अप्रोक्सीमेटली 63 ना, ऐसा कुछ है। तो 563, अगर एक प्रिंसली स्टेट भी रोड पढ़ोगे तो कितने दिन लग जाएंगे? ठीक है, तो इतना टाइम नहीं है ना, तो इसलिए सबकी इंपॉर्टेंस नहीं है। आप समझ गए किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना, ठीक है। तो उसमें से एक प्रिंसली स्टेट था कच्छप घाट। कच्छप घाट थे कौन? ये एक्चुअली राजपूत थे। आपने ये जरूर पढ़ा होगा चंदेल किंग के बारे में, विद्याधर, ठीक है, पढ़ा है? तो उसमें कोई फेमस नाम हो तो बताओ। आल्हा उदल के बारे में पढ़ा था? पृथ्वीराज चौहान व्हेन अटैक्ड चंदेला किंग, राइट? हाँ, राइट। सो अब वहीं से रिलेट करता है। तो जब that's for the period 1323 AD, so remember that period, ठीक है, that's period when the गजनवी है ना अटैक्ड ओवर द चंदेलास रूल ऑल्सो। तो चंदेलास में जो विद्याधर चंदेला किंग थे वो सब धीरे धीरे डिक्लाइन हो गए, डिसइंटीग्रेट हो गए, डिमोलिश हो गए। तो हमने जब जिन्होंने मिडिवल क्लास करी तो हमने क्या पढ़ा था, जब भी कोई बड़ा किंग डिक्लाइन करता है तो इसके बाद जो किंग बनते हैं वो यूजुअली कौन होते हैं? जो वेसल्स होते हैं, है ना, ठीक है। तो द कच्छप घाट राजपूत वर द वेसल्स ऑफ चंदेला किंग, ठीक। कच्छप घाट का मतलब है, कच्छप मतलब टॉर्टोइज, कछुआ, ठीक है। तो ये ट्राइब क्या करती थी पहले? कछुओं को मारती थी, ठीक है। दैट्स कच्छप घाट ट्राइब वाज देयर। तो कच्छप घाट तभी कच्छप घाट किंग थे, ठीक है। सो देवपाल किंग थे, उन्होंने बनवाए थे, ठीक। एंड दिस टेंपल वाज आल्सो द प्लेस फॉर एजुकेशन। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी एंड मैथमेटिक्स दे आर टू मेजर सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो पढ़ाए जाते थे। सो अगर जिसका मैथमेटिक्स जो ऑप्शनल हो तो याद रखो कि ऐसा क्वेश्चन पूछा सकता है कि 64 योगिनी टेम्पल का नाम सुना है, ठीक है। तो सो सर्कुलर इन शेप, ठीक है। सो दे आर वेरियस योगिनी टेम्पल्स ऑल्सो इन इंडिया, ठीक है, इन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र ऑल्सो, दे ऑल आर सर्कुलर, ठीक है। सो इट्स नॉट द ओनली सर्कुलर टेम्पल, ठीक है, डिजाइन अलग अलग है, लेकिन पार्लियामेंट का जो मॉडल प्रोवाइड करती है वो यही है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह ऐसे ही आप टेक अवेज निकालोगे और क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो दे आर 64 स्मॉल चैम्बर्स विद इन द मेन सेंट्रल। तो 64 योगिनीज मल्टीट्यूड ऑफ शिवलिंगा, ठीक है। तो जो हाईलाइट वर्ड याद रखो, शिवलिंगा मतलब दे बिलोंग टू इट बिलोंग टू द शिवा ट्रेडिशन, ठीक है, शिवा ट्रेडिशन से बिलोंग करता है। 64 योगिनी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जैसे योगी वैसे योगिनी, फीमेल वर्जन ऑफ योगी, ठीक है। नाउ पीवाईक्यूज देख लो एक बार, जैसे कि कैसे पूछा गया था, ये समझ लो कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं अगर वो टॉपिक हम पढ़ते हैं। सो विद रेफरेंस टू द चौसठ योगिनी टेंपल सिचुएटेड नियर मुरैना, कंसीडर द फॉलोइंग। फर्स्ट, इट इज अ सर्कुलर टेंपल बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ कच्छप घाट। तो आपको याद रखना है कि टेंपल के बारे में हमेशा याद रखो कि टेंपल किस ट्रेडिशन से बिलोंग करता है और टेंपल किसने कंस्ट्रक्ट करवाया। अगर इंफॉर्मेशन में एम्बिग्यूटी है, इट इज नॉट ऑथेंटिकेटेड, if information is not authenticated, in that case that statement would not be asked। कि अगर पता ही नहीं है, हिस्टोरियंस में डाउट है कि किसने बनवाया है, ठीक है, तो डू नॉट आर्ग्यू विद एनीवन रिगार्डिंग द हु कंस्ट्रक्टेड दैट टेंपल, ठीक है। किसी से आर्ग्यू भी मत करो क्योंकि हिस्टोरिकल तो आर्ग्यू कर ही रहे ना, तुमको क्या जरूरत है? जब हिस्टोरिकल डिसाइड कर लें कि किसने बनवाया तब तुम वो पढ़ लेना, एज सिंपल एज दैट, ठीक। दूसरा, इट इज द ओनली सर्कुलर टेंपल बिल्ट इन इंडिया, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ठीक है। तुम यूपीएससी को गलत प्रूफ कर सकते हो अगर तुम्हारे गांव में कोई छोटा मंदिर बना हो सर्कुलर, ठीक है। तो एज सिंपल एज दैट कि दिस इज नॉट द ओनली सर्कुलर टेंपल। नहीं यूपीएससी को पता है कि पूरे भारत में कहाँ सर्कुलर टेंपल है। छोटा सा टेंपल, यहाँ कोई मेजर टेंपल की बात नहीं करी है, सर्कुलर टेंपल की बात करी है। तो कोई भी सर्कुलर टेंपल कहीं भी हो सकता है, किसी के मोहल्ले में भी हो सकता है, आपके गाँव में, ठीक है। सो दैट्स वेरी सिंपल कि इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एलिमिनेशन टेक्निक लग जाएगी, ठीक है, लेकिन 64 योगिनी टेंपल तो पढ़ना ही है हमको, ठीक है, राइट। सो इट वॉज मेंट टू प्रमोट द वैष्णव कल्ट इन दिस रीजन, ठीक है। Wrong. Now, its design has given the rise to popular belief that it was the inspiration behind the clear. So language देख लो, ठीक है। तो आपको भी ये नहीं करना है कि वही जो टॉपिक एक्सट्रीम, यहाँ पे पैट्रियोटिज्म नहीं दिखाना है कि आप भी बिल्कुल अड़ जाओ। यहाँ पे यूपीएससी खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि यहाँ पर इट इज बिलीव दैट पॉपुलर बिलीव, इज इट क्लियर, ठीक है। सो व्हाट शुड बी द आंसर 1 and 4। तो 2 and 3 एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन देख लो, ठीक है। तो 2 एलिमिनेट किया, 3 एलिमिनेट किया, तो केवल बचा 1 and 4, ठीक है। तो इस यही सब एलिमिनेशन के बेसिस पे फिर वो यूपीएससी ने खुद हटा दिया एलिमिनेशन के, अब करके दिखाओ, ठीक है। नाउ सेंगोल प्लेस किया गया, ठीक है। तो हिस्टोरिकल सेंगोल, इसके क्या इंपॉर्टेंस है? तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है कि इसको एक्चुअली प्लेस किया गया तो लोकसभा स्पीकर, द सीट ऑफ द लोकसभा स्पीकर दैट्स बिहाइंड द
seat that was placed. ठीक है, इस क्यों प्लेस किया गया, इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है? when there's the power was transferred from the British to the Indian, so that's and that moment the Mountbatten discussed with Jawaharlal Nehru that we should have some ceremony regarding the transfer of power. ठीक है, so at that time Jawaharlal Nehru discussed this suggestion by Mountbatten with C. Rajagopalachari. C. Rajagopalachari suggested that I belong to the South India and their Chola kingdom. In Chola kingdom, the power transfer was done by transferring the Sengol. ठीक है, तो कैसा करते हैं फिर सेंगोल पता करिए कहाँ मंगवाया जाए. सेंगोल कहाँ था? म्यूजियम में था. ठीक है, तो सेंगोल को मंगवा के प्लेस कराया गया. सो ऑन दिस नाइट जवाहरलाल नेहरू रिसीव्ड द सेंगोल फ्रॉम द अधिनम्स. कहाँ से आया? साउथ से आया था. अधिनम्स वर प्रिएस्ट. ठीक है, तो इन साउथ इंडिया द टर्म अधिनम्स वाज यूज्ड फॉर प्रीस्ट ऑफ द थिरुवद्दुथरई अधिनम. अभी याद रखो, हमें ये पढ़ना है. ठीक है, कहाँ है ये मठ? मयूलदथरई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु. ठीक है, सो थिरुवद्दुथरई अधिनम ये हमें पढ़ना है. और ये याद रखना है कि अगर मैच द कॉलम में कुछ डिस्ट्रिक्ट मैच करने के लिए आते हैं, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि मोरना डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंस हो गया. ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया रिगार्डिंग द चौसाडोगनी टेम्पल. देन मयूलदथरई डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट हो गया. तो ये हमें याद रखना है कि एक्चुअली दैट बिलोंग टू तमिलनाडु एंड व्हाई दिस इज आस्क्ड बिकॉज द सेंगोल. ठीक है, सो द प्राइम मिनिस्टर टुक अ डिसीजन टू अडॉप्ट सेंगोल a नेशनल सिंबल ऑफ द अमृतकाल. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि आप में शायद किसी को पता हो कि अमृतकाल का नेशनल सिंबल डिक्लेयर किया गया है सेंगोल को. ठीक है, सेंगोल हैज नाउ बिकम द नेशनल सिंबल ऑफ अमृतकाल. डू यू हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग अमृतकाल? व्हाट इज अमृतकाल? व्हाट? तो 2047 is marked as the 100th year of independence. ठीक है, तो the rest of the period is called अमृतकाल. ठीक है, तो 75th anniversary which year? ठीक है, तो दैट्स ऑनवर्ड. ठीक है, 75 to 100 25 years. तो दैट्स पीरियड 25 years, दैट इज द कमिंग years. तो दैट्स पीरियड इज कॉल्ड अमृतकाल. ठीक है, इन विच देयर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैज बीन एनविसाज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये देख लो, एक सेंगोल ऐसे दिखता है. स्कल्पचर है, गोल्डन स्कल्पचर, तो इट्स अ मिक्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, राइट. सो एट द टॉप ऑफ दिस स्कल्पचर यू विल फाइंड द नंदी बुल. ठीक है, सो रिमेंबर दैट एट द टॉप ऑफ द सेंगोल विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज प्लेस्ड. ठीक है, कैसे क्वेश्चन बनेगा? आर यू गेटिंग दैट? एलिफेंट, बुल, हॉर्स. क्लियर? सो अभी अ वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो टफ नहीं है. ठीक है, वो आपके लिए टफ हो सकता है, राइट. सो देखना है और इसको. ठीक है, समझ आया? ओके, फाइन. सो नाउ अदर फैक्ट्स. ठीक है, सो सेंगोल मतलब दिस तमिल वर्ड सेम्मई. सेम्मई मीन्स द न्याय. ठीक है, righteousness, right. So actually the transfer of power through the Sengol means the nyaya, the responsibility of nyaya is being transferred. Clear? So it is blessed by the high priest of leading dharmic mutt in Tamil Nadu. Symbol is nyaya. Nandi was placed at the top, that depicts nyaya, right. And why Nandi? Because it belongs to, very good, ठीक है, Shiva cult. Okay, Shiva tradition. So the mutt belongs to Shiva cult. That is why Sengol have the Nandi at the top. Clear? So Lord Mountbatten, ठीक है, the last viceroy of India asked Nehru about that. हम डिस्कस कर चुके. श्री राजगोपालाचारी ने सजेशन दिया एंड देन समाचार्य जो उस टाइम के थे वो सेंगोल लेके आए साउथ इंडिया से. ठीक है, सो इट इज अ गोल्ड प्लेटेड सिल्वर स्कल्पचर एंड कंस्ट्रक्टेड बाय टू मेन, विमेदी एथिराजुलू एंड विमेदी सुधाकर. ठीक है, दे आर नो मोर. और उनके अब जो फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, वो आए थे जब सेरेमनी हुई थी. द स्कल्पचर मींस 5 feet in height. तो ये सब सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन दैट्स नॉट रिक्वायर्ड. वेवर सेंगोल किट, तो टिल डेट दैट वाज केप्ट इन म्यूजियम. ठीक है, तो ये एक फोटो है जिसमें जवाहरलाल नेहरू सेंगोल को पकड़े हुए हैं और ये फोटो है नेक्स्ट जो म्यूजियम में रखा हुआ है. ठीक है, क्लियर. सो अबाउट थिरुवरई अधिनम. ठीक है, ये टॉपिक जितना हो सके आप आपको रिवाइज करना है और समझ के जाना है. ठीक है, सो इट इज अ प्रोमिनेंट शैव मोनेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन. तो इट बिलोंग्स टू शैव ट्रेडिशन. ठीक है, याद रहेगा. ओके, सो it was established in the 10th century by the Tirukana Sabandar, who was one of the 4 main Nayanars of Shaivism. ठीक है, तो don't get surprised when you are asked about the Alvar saints and Nayanar saints. So Nayanar saints, देखो अब Nayanar saints की बात की गई है, इसका मतलब Nayanar saints belong to which tradition? So Alvar must be Vaishnav. How many major Alvar saints and Nayanar saints?
Any idea? Who were which of these out of these two were larger in number? अलवर ज्यादा थे कि नैना ज्यादा थे? नो आइडिया. देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है. इफ यू हैव नो आइडिया देन यू गेट दैट आइडिया, ठीक है. बहुत जरूरी है ये. अलवर नैना संत अगर आपको नहीं पता है सेंट्स के बारे में तो दैट्स द क्वेश्चन मार्क, ठीक है. सो बहुत सिंपल क्वेश्चन था. अभी तो मैंने क्वांटिटी नहीं पूछी कितनी थी, ठीक है. सो वैष्णव सेंट्स वर अलवर, दे वर 12 and 63 were Nayana sons, ठीक है. They belong to the Saiva tradition, right? So the head of the Thiruvandari Adhinam holds the title of Adhin Kartha, ठीक. Now and is considered as the spiritual leader and guide for the followers, ठीक है. तो ये जो important facts हैं इनको एक बार देख के जाना एग्जाम, ठीक है. Now coming to the next topic, G20 Summit 2023, right? So anybody has an idea regarding the unique thing in this G20 summit? What are the key unique takeaways? What happens for the very first time in G20 summit? पहली बार तो हो रही G20 इंडिया में, right? So this is the very first time when G20 summit happening in India. For the very first time, do you have any idea about the term troika? What is troika? Okay, so this troika includes the country with the previous presidency, present presidency, and the presidency after India. So who will take the presidency after India? Who is the present president of which country has the present presidency of G20? Brazil or India? ब्राजील. चलो ठीक, अब देखते हैं अभी, ठीक है क्या है, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे इसलिए अभी रोक दो यहीं पे. अभी देखो पूरा कॉन्सेप्ट समझो कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं. जैसे मैं पूछ रहा हूँ वैसे क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है. सो अभी प्रेजेंट ट्रोइका क्या है? व्हाट इज प्रेजेंट ट्रोइका? हाँ मतलब ठीक है, समिट तक बता दो, 2023 समिट तक बता दो. जब तक हुई थी, जब तक इंडिया प्रेसिडेंट था तब तक ट्रोइका क्या था? इंडिया इज द सेंटर, नेक्स्ट ब्राजील, एंड प्रीवियसली प्रेसिडेंसी वाज टेकन केयर बाय Indonesia. It means that the last G20 summit, what is the number of last G20 summit? 17th. 17th G20, ऐसे क्वेश्चन है. 17th G20 summit held in. अब बताओ क्या करोगे अगर तुमको नंबर नहीं याद है? ये तो पता है कि सब कुछ पढ़ के आए, लेकिन ये भूल गए कि 17th समिट कहाँ हुई थी. अगर क्वेश्चन इससे सिंपल सा आता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. 17th G20 समिट हेल्ड इन, कर पाओगे? ठीक है. सो इसलिए बहुत ही थॉरोली पढ़ना है टॉपिक, ठीक है. तो 17th हेल्ड इन Indonesia, ठीक है. So for the very first time it is held in India, and for the very first time Troika, the member of Troika from the developing countries, ठीक है. तो वो भी देखते हैं आगे. So about G20, ठीक. So the G20 forum was established in 1999 by the finance minister and the central bank governors, ठीक है, from 7 countries: Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK and USA. So when you look at the countries Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, US, कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? क्या याद आया? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन याद आया? 7 कंट्रीज हैं, G7, ठीक है. तो अब याद रहेगा, G7 कंट्रीज के मेंबर तो याद ही होंगे आपको, ठीक है. कौन कौन से? कनाडा, यूएस, यूके और जर्मनी, इटली, जापान. EU is a member of G7 or not? EU is the member of G7 or not? टिक लगाओगे कि नहीं लगाओगे? आज पढ़ो जाके फिर टिक लगाओगे, ठीक है. सो अब देखो 1978 तक ये स्टैब्लिश हुआ. देखो ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस स्टैब्लिश हुई, तो सारे फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक के मिनिस्टर्स, दे पुट टुगेदर विद देयर आइडियाज एंड थॉट हाउ टू गेट अवे फ्रॉम दिस फाइनेंशियल क्राइसिस इन साउथ ईस्ट एशिया. सो दो डेवलप्ड अ प्लानिंग मैकेनिज्म, राइट. सो दिस इज हाउ द G7 countries formed the basis of G20, right. Up to 2008 these were led by the finance minister, but 2008 onwards now G20 not only taken the forum as the forum for the financial mechanism but also taken the other issues also, ठीक है. तो environmental issues, climate issue, security issues, तो पहले केवल फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज ही डिस्कस करते थे. तो अब इसमें now 2009 onwards this is led by the head of the government. तो अब G20 की समिट होती है उसमें हेड ऑफ द गवर्नमेंट समिट में पार्टिसिपेट करते थे. इससे पहले द मीटिंग वाज हेल्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द सेंट्रल बैंक गवर्नर. क्लियर, राइट. सो
Now the members, any person can tell me all the name of G20 members. किसी को याद है? देखो हमने कई बार, ठीक है, ये प्रैक्टिस करी है क्लासेस में, करंट अफेयर की क्लासेस में, ठीक है, याद भी करवाया तरीका करने का, ठीक है, तो हो सकता है कि मिस हो रहा हो, लेकिन फिर से प्रैक्टिस करो याद करने की, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। सो देयर आर 3 मेजर कंट्रीज इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, कौन कौन? नॉर्थ अमेरिका तो पता है ना, नॉर्थ अमेरिका इज नॉट अमेरिका, ठीक है, इट्स कॉन्टिनेंट, राइट। सो पहले तो मैप लगा लो, इसके पास मैप नहीं हो, ठीक है, क्योंकि द प्राइम एलिजिबिलिटी, ठीक है, तो 21 ईयर्स एज के साथ साथ मैप भी लगाना एक एलिजिबिलिटी है, याद रखो, ठीक। सो पहला नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, कौन कौन सी कंट्रीज, मेजर कंट्रीज कौन कौन सी हैं? नॉर्थ से साउथ आ जाओ, कनाडा, यूएस, मैक्सिको। फिर साउथ अमेरिका में आओ, 2 मेजर कंट्री कौन कौन सी, ठीक है, देखो देख के बोल लो, कोई बात नहीं है, ठीक। नाउ कमिंग टू द यूरोप, ठीक है, तो यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ईयू, याद कर लो फिर से, ठीक है, कौन कौन सी? यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस एंड ईयू, ठीक है, तो 5 and 5 10। अब आ जाओ एशिया और अफ्रीका, ठीक है। सो देखो केवल एक कंट्री बेचारी, ठीक है, अभी तो अफ्रीकन यूनियन बिकेम द पार्ट ऑफ G20, अब तो पूरा यूनियन पार्ट बन गया, लेकिन जब यूनियन नहीं था तो केवल साउथ अफ्रीका थी, दैट वाज रिप्रेजेंटिंग द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, right? So African, the sole country representing the Africa was South Africa, South Africa। then अब एशिया की तरफ आगे बढ़ोगे तो सऊदी अरेबिया, टर्की, रशिया, इंडिया, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, से करते आओगे तो आपको 10 कंट्री और मिलेंगी, देन साउथ अफ्रीका एंड अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अब एक बार मैप देखो तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। तो कनाडा, यूएस, मैक्सिको, देखो ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ प्रैक्टिस क्योंकि दिस इज हॉटस्पॉट। पिछली बार G20 सबमिट हुई, पेपर हुआ, यूपीएससी को पता था अच्छे से कि सब G20 रट के आए हैं, ठीक है, लेकिन सरप्राइजिंग हो सकता है कि दिस प्रीलिम्स और नेक्स्ट प्रीलिम्स ऑल्सो, ठीक है। तो अभी 4-5 साल का प्रोजेक्ट है G20 यूपीएससी का, ठीक है, कि आप लोग भूलो तब मैं पूछूंगा, क्लियर। सो कनाडा, यूएस, मैक्सिको, ब्राजील, क्लियर। नाउ कमिंग टू द हियर फिफ्थ, ठीक है, तो 5 कंट्री कौन कौन सी? यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ईयू, क्लियर। देखो अभी कंफ्यूजन मत रखना कि जर्मनी, फ्रांस, इटली ये सब तो ऑलरेडी ईयू का पार्ट है, फिर भी ये तो ईयू इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर European Union, the common consensus, the common issues, and they have their own set of issues, individual, ठीक है। Spain is also, Spain is permanent guest, ठीक है, तो permanent guest है, तो अब जब permanent guest है तो मेंबर बनने की जरूरत भी नहीं, कुछ ऐसा बेनिफिट भी नहीं वो मेंबर बनने से, क्योंकि हर एक जो भी फोरम्स होते हैं तो उसमें स्पेन पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, तो स्पेन इज परमानेंट गेस्ट। अब स्टार्ट करते हैं साउथ अफ्रीका, ठीक है, तो सोल कंट्री, ठीक है, अदर देन अफ्रीकन यूनियन द ओनली कंट्री। तो नाउ कमिंग टू एशिया, ठीक, तो सऊदी अरेबिया, टर्की, देन स्टार्ट विद रशिया, रशिया, चाइना, इंडिया, देन फिर ईस्ट पे आ जाओ, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, क्लियर, याद रहेगा, ठीक है। तो G20 को प्रैक्टिस करते रहो, जब भी आप मैप सामने दिखे तो आप G20 को प्रैक्टिस करो, ठीक है, और मैप ऐसी जगह लगा लो जहां पर आपको रोज जाना ही होता हो, ठीक। मतलब ऐसे प्लेस अपने रूम में, चाय रोज पीते हो, किचन में रोज जाते हो, किचन में सामने लगा लो, ठीक है, ब्रश तो रोज करते हो, ठीक, जहाँ पे भी ब्रश करते हो खड़े होकर वहां लगा लो, आर यू गेटिंग क्लियर, ठीक है, ऐसी जगह, क्योंकि मैप ऐसी चीज है आपको दैट्स नीड मोर प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी मैप की आपको। तो प्रेसिडेंसी इट्स रोटेट्स एवरी ईयर, ठीक है। नाउ इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राजील, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन होंगे, ठीक है, साउथ अफ्रीका एंड USA, next presidency will be after Brazil, that would be South Africa. So next troika, that India, Brazil and South Africa, after that the troika would be the Brazil, South Africa and clear, ये डिक्लेयर्ड हो चुके, ठीक है। सो मैंडेट, देयर इज नो परमानेंट सेक्रेटरिएट, दिस एंटायर वर्किंग मैकेनिज्म इज डन बाय द 2 वर्टिकल्स, शेरपा, ओके। सो जो शेरपा होते हैं ये एक्चुअली दे आर द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और इसके बाद एक फाइनेंशियल ट्रैक होता है, 2 ट्रैक होते हैं, फाइनेंशियल ट्रैक और शेरपा। तो फाइनेंशियल मैकेनिज्म अलग डिस्कस होती है, और शेरपा एक्चुअली दिस द इट लीड्स द इट रिप्रेजेंट्स द कंट्री एट द एग्जीक्यूटिव लेवल। तो जितने भी फोरम्स हैं, सब ग्रुप्स हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, वो अंडर द लीडरशिप ऑफ शेरपा। तो शेरपा, अभी इंडिया से कौन शेरपा? वेरी गुड, अमिताभ कांत, ठीक है। सो ही इज अ मेंबर ऑफ नीति आयोग,
राइट. सो हाउ डज इट वर्क, शेपर ट्रैक और फाइनेंस ट्रैक. तो आपने देखा होगा कि श्रीनगर में टूरिज्म की फोरम हुआ था G20 का, ठीक है. तो दे आर अदर वर्किंग ग्रुप्स ऑल्सो. तो अदर देन फाइनेंस ट्रैक एंड शेरपास देयर आर फर्दर मैकेनिज्म. तो वर्किंग ग्रुप्स और ऑल्सो देयर, ठीक है. तो फाइनेंस वर्किंग ग्रुप है, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप है, ठीक है, एनर्जी वर्किंग ग्रुप एंड ऑल, राइट. सो now with respect to the presidency, so 17th G20 summit was held in Indonesia, Bali. 18th held in India, 19th would be held in, okay. So now that took place in kaha, Bharat Mandapam, ठीक है. So Bharat Mandapam is again inspired by which mandap or which monument, ठीक है. तो ऐसा क्वेश्चन आएगा. भारत मंडपम में आप सबको पता है ना, भारत मंडपम में हुआ था, ठीक है. दैट इज द इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, नया बनाया गया. तो भारत मंडपम का जो डिजाइन है दैट्स बेस्ड अपॉन द अभिनव मंडप. और अभिनव मंडप दैट वाज एक्चुअली द द कॉन्फ्रेंस मीटिंग फॉर द बासव अन्ना लिंगायत ट्रेडिशन. तो लिंगायत ट्रेडिशन के जो मेजर लीडर थे, ओके. am I audible now? I must be. हाँ, फाइन, ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट समिट हेल्ड इन इंडिया एज वेल एज साउथ एशिया, राइट. सो इनवाइटेड कंट्रीज, बांग्लादेश को देखो, अब सारी याद नहीं कर पाओगे, ठीक है, नहीं पूछा जाएगा. इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश, मॉरिशस, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई, ठीक है. स्पेन परमानेंट गेस्ट है, ठीक है. तो स्पेन आपको जैसे गेस्ट कंट्री का नाम है, स्पेन आएगा ही आएगा. और नहीं आता है तो आपको याद रखना है कि स्पेन है, ठीक है. आया तो तुरंत टिक कर देना, ठीक है, कि वन पेयर तो होगा ही, ठीक है. तो कौन कौन से, बांग्लादेश, मॉरिशस, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड यूए, ठीक है. जो मेजर कंट्रीज है वो याद रख लो. देन द पार्टिसिपेटिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. सो दे आर द परमानेंट इन्वाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. परमानेंट इन्वाइटीज, जैसे परमानेंट इन्वाइटीज कंट्री है स्पेन, वैसे ही ये कंट्री, ये जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये भी परमानेंट इन्वाइटीज हैं. तो ये ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में हो तो इसलिए आए हैं, ठीक है. देन अगेन द ट्रॉइका, फर्स्ट टाइम, राइट. सो थीम वाज वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है. तो वसुधैव कुटुंबकम भी थीम थी, और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इज ऑल्सो थीम, ठीक है. सो दोनों नहीं आएंगे, दोनों आती तो दोनों पे दोनों सही होंगे, ठीक है, लेकिन एक आएगी, ठीक है. तो नाउ द वसुधैव कुटुंबकम द phrase is taken from Mahaupnishad. Mahaupnishad is the adjuncture of the अथर्ववेद, ठीक है. सो द टेक्स्ट इज क्लासिफाइड एज सामान्य उपनिषद. सामान्य उपनिषद कैटेगरी में आता है ये, पहला पॉइंट. दूसरा, दिस द एडजंक्ट ऑफ अथर्ववेद एंड सामवेद, ठीक है. तो some anthologies drawn from the अथर्ववेद and some anthologies drawn from सामवेद also, ठीक है. so it belong to both of them. तो अगर दोनों आते हैं दोनों पे टिक, एक आता है तो एक पे टिक. क्लियर, अथर्ववेद एंड, वेरी गुड. सो लोगो से टेक अवेज लेने, ठीक है. तो लोगो में क्या क्या देखो. सो ये जो लोगो दिख रहा है, ठीक है, दैट अर्थ, 7 petals, लोटस, भारत, 23 इंडिया एंड 4 कलर्स, ठीक है. कलर्स कौन कौन से, ठीक है. इट मींस इट रिप्रेजेंट्स द कलर्स ऑफ इंडियन फ्लैग, ठीक है. सो द 7 petals इज deliberately made, ठीक है. तो 7 petals represent what, 7 continents or the
7 notes of music. Which are 7 notes of music? हाँ बस ठीक है, अभी गा के मत दिखाना, ठीक है. सो ओके, सो कलर्स, ठीक है, देख लिया. नाउ भारत रिटर्न हो देगा, ठीक है. सो ऐसे क्वेश्चन ड्रॉ कर सकता है यूपीएससी, ठीक है. नाउ ठीक है, आप देखते हैं की प्रायोरिटीज, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि व्हाट आर की प्रायोरिटीज ऑफ G20, ठीक. तो नॉट G20 अबाउट G20 बट अदर फोरम्स आल्सो. तो कौन कौन से? द इंक्लूसिव इक्विटेबल सस्टेनेबल ग्रोथ, द लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, राइट, वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल मैपिंग, डेवलपमेंट कोऑपरेशन, ठीक है. तो एक बार ये सारे क्लियर, आगे बढ़े. वेरी गुड. सो आउटकम देख लो. तो अफ्रीकन यूनियन को एडमिट किया गया, ठीक है, और नया क्या क्या हुआ देखते हैं. सो अफ्रीकन यूनियन कंप्राइजेस 55 मेंबर्स, ठीक है. दे आर द ऑफिशियली लॉन्च इन 2002 एंड रिप्लेस्ड its predecessor organization, the organization of African Unity. Now remember that, ठीक है. The organization of African Union was the term in news that belongs to which organization? Clear? African Union. The primary objective is to promote unity, cooperation and all by the African countries, ठीक है. जो भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कंट्रीज आती हैं, ठीक है, 55 कंट्रीज ने कलेक्टिवली दे मेड एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. दे स्ट्रक्चर ऑफ द, तो हेडक्वार्टर वगैरह नहीं पूछता यूपीएससी, ठीक है. स्ट्रक्चर क्या है? असेंबली होती है, जैसे जनरल असेंबली यूएन की होती है, सिमिलरली. देन एग्जीक्यूटिव काउंसिल वुड बी देयर, देन ईयू कमीशन इज आल्सो देयर, देन द पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल इज आल्सो देयर, ठीक है. नो नीड टू गेट इनटू डिटेल ऑफ दैट, ठीक है, बट यू शुड नो द स्ट्रक्चर. देन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, right, this is the initiative launched during G20 summit, that is very important, ठीक है. So now अगर इस साल नहीं पूछा गया, क्योंकि that's going to be very important, so maybe UPSC can make a bluff कि नहीं पूछें, लेकिन आपको पढ़ के जाना है, तो आपको याद रखना है, ठीक है, कि ये इसको मिस नहीं करना है. G20 का जितना भी आउटकम रहा है, ठीक है, यू डोंट हैव टू मिस दैट. तो GBA इज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस. व्हाट इज बायोफ्यूल? क्विकली कोई भी. बायोफ्यूल्स, they are hydrocarbons, ठीक है. they are hydrocarbons worked as a fuel from organic material, ठीक है. they are living or non living, ठीक है. but the difference is between the biofuel with the fossil fuel is that fossil fuel converted into fuel after a long period of time, ठीक है. और जो बायोफ्यूल है उसमें जो डेड एनिमल्स, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, उससे वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उसको हम बायोफ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं. एग्जांपल ऑफ बायोफ्यूल, ठीक है, फाइन, एथेनॉल एंड ऑल. So GBA is India-led initiative. Remember that when any initiative is India-led, that would become very important for UPSC. ठीक है. Let promote the adoption of biofuels, and the most important thing is that the members of the GBA, ठीक है. तो कौन कौन से, अब that will help accelerate India's existing biofuel programs. So ये programs हम पढ़ेंगे, ठीक है, schemes and initiatives में. So PM जीवन योजना सतत sustainable alternative towards the affordable transportation, ठीक है. तो पर्पस ये है कि फॉसिल फ्यूल्स जो लेट ट्रांसपोर्टेशन दैट नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ऑल, ठीक है. तो जो अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन में कन्वर्ट करना है. गोवर्धन स्कीम आल्सो तो कन्वर्टिंग द काउ डंग इनटू द बायोफ्यूल. नाउ सो फॉर्मेशन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, ठीक है. तो 9 इनिशिएटिंग मेंबर्स थे, ठीक है, जिसमें इंडिया, यूएस. नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट, ठीक है, ये रटना है, राइट. सो मेमोराइज करना होगा कि जो जीबी है, जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, उसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं. तो इंडिया, यूएस, ब्राजील, अर्जेंटीना, बांग्लादेश. इंडिया, यूएस, ब्राजील तो जरूर याद रखना, बिकॉज कलेक्टिवली दे कंट्रीब्यूट 85% ऑफ द ग्लोबल बायोफ्यूल प्रोडक्शन, ठीक है. लार्जली द यूएस एंड ब्राजील. तो इंडिया, यूएस, ब्राजील, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका एंड द यूएई, ठीक है. तो 52% कंट्रीब्यूशन डन बाय यूएसए इटसेल्फ अलोन, ब्राजील 30% एंड इंडिया 3%, ठीक है. अभी नया नया ज्वाइन किया तो भी कम है, आगे बढ़ेगा, ठीक है. नाउ और हम भी इंपॉर्टेंस भी देखेंगे जब हम बायोफ्यूल पढ़ेंगे, तो लाइक द इंडियाज स्ट्रेटेजी टू इम्प्रूव द climate change or the combination of the global gas emission with the ethanol. तो आप देखो जो गैस एमिशन है, यानी कि जो पेट्रोल ब्लेंडिंग के थ्रू गैस एमिशन होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए एथेनॉल को ब्लेंड करने का टारगेट लिया गया, ठीक है. तो डू यू हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग द टारगेट बाय विच इंडिया हैज टू अचीव द एथेनॉल ब्लेंडिंग टू 20% 2030, बट रिसेंटली इट इज एडवांस्ड, ठीक है, 2025 कर दिया, ठीक. सो नाउ
8 G20 देखो अभी कितने में, देखो फाउंडिंग मेंबर्स याद रखना और अभी कितने मेंबर्स हैं वो एक बार देखो, ठीक है। तो 20 कंट्रीज एंड 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, इसके बाद अभी कितनी कंट्रीज ज्वाइन कर चुकी है, 22 कंट्रीज नाउ बिकम द मेंबर। इनिशियली कितने थे, 9, ठीक है। तो 22 कंट्रीज रिसेंटली, मतलब अभी कितना, आज क्या है, जनवरी, याद रखना जनवरी में कितने थे, ठीक है। फरवरी में हो सकता है कि बढ़ जाए, ठीक है। तो डेटा जनवरी तक है, राइट। सो 8 G20 कंट्रीज, अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, इंडिया, इटली, जापान, साउथ अफ्रीका, यूएसए, बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस, यूएई। 10 नॉन G20 कंट्रीज, आइसलैंड, केन्या, गुयाना, पैराग्वे, सेशल्स, श्रीलंका, युगांडा, फिनलैंड, तंजानिया, फिलीपींस। किस कोई ऐसा तो नहीं जिसने कोई कंट्री का नाम पहली बार सुना हो? सारी कंट्री का नाम सुना हुआ है, वेरी गुड, ठीक है। तो 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है। तो ये भी एक बार देख लो, राइट। नाउ कमिंग टू द IMEC, दिस इज अ न्यू इनिशिएटिव अदर देन GBA, ठीक है। तो अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया, ठीक है। दूसरा ग्लोबल बायोफिल अलायंस, और तीसरा IMEC कॉरिडोर, ठीक है। द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, राइट। सो नाउ इसके फाउंडिंग मेंबर कौन है? US, other than India, US, Saudi Arabia, EU, UAE, France, Germany and Italy, that connects India with Middle East, then Europe, ठीक है। So the connectivity provides not only the railway but sea lanes also and transport corridors, ठीक है। तो road, rail and the seaports also, ठीक है। All the modes of transportation is the part of this project. This is in contrast with China's Belt and Road Initiative, ठीक है। तो वो एक कंपटीशन चल रहा है, ठीक है, कि BRI है तो उसके कंट्रास्ट में हमारे पास क्या ऑप्शन है, ठीक है। सो अदर की हाइलाइट्स ऑफ G20 समिट, उसमें क्या है, जो टारगेट, ठीक है। तो दैट इज that may be asked, that's what is the target to be achieved by 2030, ठीक है। और what are the year under which tripling the global renewable energy capacity is committed by the G20, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो एक बार पढ़ जरूर लेना है इसको, ठीक है। तो द टारगेट इज ट्रिपलिंग द ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, ठीक है। इसके बाद कमिटमेंट टू ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डेटा लिया गया है क्योंकि दो एस्पेक्ट डिस्कस किए गए थे, डेक्कन G20 हाई लेवल प्रिंसिपल ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, एंड दूसरा महर्षि, ठीक है, मींस द मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव, ठीक है। यानी कि मिलेट्स को प्रमोट करना, ठीक है। दिस द डिकेड इज आल्सो द 2022 2030 इज आल्सो द डिकेड ऑफ मिलेट्स, ठीक है। नाउ अब ये जो दो इनिशिएटिव्स हैं उनमें फर्दर MS की बात की गई, तो MS वाज इन न्यूज, यानी कि एग्रीकल्चर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम वाज इन न्यूज इन G20 that relates to what, that is the information system that provides the transparency regarding the pricing of the food, the basic foods, ठीक है। तो इसमें मिलेट्स भी आता है, ठीक है, बार्ले, जॉ एंड ऑल, ठीक। एंड द जियोग्लैम, दैट्स द ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन ग्लोबल एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग for greater transparency, that provides the data regarding the availability of the food crop. Like for example, note AMIS is an interagency platform to enhance food market transparency and policy response for food security, ठीक है। That was envisaged and launched during the G20 मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर समिट इन 2007-8 2011, ठीक है। और दूसरा जियोग्लैम इज अगेन द मार्केट ट्रांसपेरेंसी एंड फूड सिक्योरिटी बाय प्रोवाइडिंग द टाइमली एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड, कि कहां पर क्या प्रोडक्शन लेवल है, कहां पर प्रोडक्शन डाउन हुआ है एंड वाई डाउन हुआ है, ठीक है। सो दैट प्रोवाइड्स द रियल टाइम डेटा, ठीक है। जैसे इंडिया में मान लो फेमाइन आया और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डाउन हुआ है, तो दैट्स द system that provides the real-time information regarding the capacity of any particular country of these millets, so that to ensure the availability of foods, that ensure the food security, clear। now स्मॉल आर्म्स एंड टेररिस्ट सेफ हेवन स्पेस पे बात हुई थी, वन हेल्थ अप्रोच पे बात हुई, क्लाइमेट फाइनेंसिंग कमिटमेंट पे बात हुई, ठीक है। दैट इट मींस दैट दैट शुड बी द क्वांटम जंप आल्सो विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंसिंग बाय द डेवलप्ड कंट्री टू द डेवलपिंग कंट्रीज, राइट। सो द US was forced to contribute more, and other developing country also, regarding the donation with respect to the contribution in achieving the target of net zero emission by 2050। ये सारे ईयर याद रखना, ठीक है, कि बायोफ्यूल का टारगेट क्या है 2030, नेट जीरो एमिशन का टारगेट क्या है 2050, क्लियर। ओके, नाउ इंडियाज कल्चरल शोकेस ड्यूरिंग G20, दैट्स द भारत मंडपम। तो अब इसलिए क्योंकि जब आप ये सब पढ़ोगे तो इनको थोड़ा डीप में पढ़ना, ठीक है। लॉर्ड नटराजा चोला स्टाइल, नटराजा स्टाइल एंड और डांस फॉर्म, ठीक है। देन ब्रॉन्ज, देन कोणार्क चक्र ऑफ उड़ीसा सन टेम्पल,
तो उड़ीसा सन टेम्पल के बारे में थोड़ा आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तो क्या मॉडल रहा आर्किटेक्चर का, कौन सा डिवाइडिंग स्टाइल यूज हुई है, ठीक है वो। एंड देन थंजावुर पेंटिंग, ठीक है। तो ये सब, क्योंकि ये सब कल्चरल डिपिक्शन था, तो इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री में, ठीक है। ब्रास स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा, देन डाइवर्स म्यूजिकल हेरिटेज, हिंदुस्तानी फॉक, कर्नाटक डिवोशन, ठीक है। दैट्स नॉट ओनली फॉर मेंस पर्पस बट आल्सो फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। नाउ कमिंग टू द कॉरिडोर, तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो था, ठीक है, जिसकी हमने बात की, हाँ यस। हाँ, लेकिन ये जो G20 में कमिट किया गया 2050 तक नेट जीरो एमिशन। नेट जीरो एमिशन का मतलब समझते हो, व्हाट इज दैट? इसका मतलब ये नहीं कि एमिशन को जीरो कर देना है, ठीक है, ठीक है। दैट शुड बी द नेट जीरो, मतलब वॉट एवर वी आर एमिटिंग वी हैव द अल्टरनेटिव टू reduce that, ठीक है। सो IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEC प्रोजेक्ट है, इसका पार्ट देख लो क्या है, क्योंकि इस पे डिटेल्स आ चुकी हैं, ठीक है। सो द ईस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग इंडिया टू Arabian Gulf, then Western Port. The Northern Port corridor, that's the connecting the Gulf of Europe. So this, the western part is called Northern Corridor that connecting the Gulf to Europe. तो अब इंडिया, अरेबियन गल्फ, यूरोप, तो जितना ये पूरा रूट आप देख लो, ठीक है, ये करेंगे मिशन प्रीलिम्स में, ठीक है, ओ सॉरी मैपिंग की क्लासेस में, राइट। सो मैपिंग की क्लासेस में नाउ इट्स गोइंग टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विद रिस्पेक्ट टू द मैपिंग, ठीक है। तो यहाँ कौन कौन से पोर्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, तो हाइफा, रियाद, सऊदी अरेबिया, जबेल अली, यूई, ठीक है। मुंबई से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ पर सी लेन से कनेक्ट होगा, इसके बाद रेल कनेक्ट होगा, देन आफ्टर further highway connect, rail connect, and then further sea lane connectivity. That's provide all three types of connectivity from Mumbai port, ठीक है, Nhava Sheva port, okay, Jawaharlal Nehru port है, that is the major point selected for this IMEC corridor. क्लियर। सो अभी लेकिन ये दैट्स ऑन पेपर, ठीक है, देयर इज नो कंस्ट्रक्शन और द बजट इज इम्प्रूव, तो अभी तक इसका बजट कौन देगा, देयर इज नो फर्दर क्लैरिटी ओवर दैट, ठीक है। तो बजट पे कोई क्लैरिटी नहीं है, इसका ब्लूप्रिंट नहीं आया है, ठीक है, अभी तक की कोई, क्योंकि देयर इज मल्टीपल मोड्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल गवर्नमेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्वड, ठीक है, एंड इजराइल पैलेस्टाइन वॉर इज आल्सो गोइंग ऑन, ठीक है। सो दिस आल्सो द की इशू रिगार्डिंग द थ्रेट टू दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वो मीन्स का पार्ट है कि आप उसको कैसे क्रिटिकली एनालाइज करोगे इस प्रोजेक्ट की फ्यूचर पे, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर बढ़ गए हैं, ठीक है, सऊदी अरेबिया, इजराइल एंड ऑल, एंड दिस रीजन इज आल्सो वेरी vulnerable with respect to the international relation, ठीक है। तो that's the future of this project will be depending upon the relationship between the countries in this region, right? So about, अच्छा, ये part जो IMEC है, that IMEC is the part of the major project PGII, ठीक है। So अब देखो इस ये actually ये जो हमने IMEC की बात करी, ठीक है, तो IMEC ये एक, दिस इज नॉट द इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, ठीक है। G7 सबमिट हुई थी, G7 सबमिट में एक प्रोजेक्ट एनविसाज किया गया था, दिस कॉल्ड द पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, partnership for global infrastructure and investment, that was envisaged, and this is the part of that project. So if question is asked like IMAC is part of which of the project, ठीक है। तो this is PGII, partnership for global infrastructure and investment project. So that's why we have to understand this project, to this collaborative effort by G7, तो G7 का एफर्ट था ये, जिसको G20 में डिस्कस किया गया कि PGII के थ्रू हम IMEC कैसे डेवलप करें, राइट। सो अगेन वेरी सिंपल कि व्हाई दिस प्रोजेक्ट इज इन्वर्सास, टू कनेक्ट, टू प्रोवाइड द बेटर कनेक्टिविटी, प्रोवाइड द बेटर ऑप्शन that links together all the modes of communication, ठीक है। that will boost the economy of the Central Asia, that collect the Europe via sea lanes, via the route of the Arabian Sea and the Gulf, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमारे पास जो अल्टरनेट रूट क्या है, वो दैट इज द BRI, दैट्स व्हाई द चाइना प्लान envisaged BRI and the alternative route is envisaged by IMEC, right? So G20 का जो जून 21 में सबमिट हुआ था, इसमें पहली बार इसको अनाउंस किया गया था, उसके बाद इस पर फर्दर डिस्कशन स्टार्ट हुआ G20 में जो इंडिया में सबमिट हुई, ठीक है। सिग्नेटरीज इंडिया, यूएस, हम भी पहले भी डिस्कस कर चुके थे, एक बार फिर से ये देख लेना था, ठीक है। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और IMEC के मेंबर्स कौन कौन से, क्योंकि इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है, तो याद रखना इसके मेंबर्स कौन कौन से। नाउ पोर्ट कौन कौन से कनेक्ट करेगा, इंडिया का मुंद्रा, कांदला और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नावा शिवा, एंड मिडिल ईस्ट में Jabal Ali, Abu Dhabi in the UAE, and the Dammam and Ras Al Khair port in Saudi Arabia. Mark my words, जितने भी ये पोर्ट्स हैं, ठीक है, इनको अंडरलाइन कर लो,
कोई भी पोर्ट बाद में पढ़ना, पहले इन सारे पोर्ट्स को, ठीक है। नाउ इजराइल हाइफा पोर्ट, यूरोप पायरेस पोर्ट इन ग्रीस, मेसिना इन साउथ इटली एंड मैसेडोनिया इन फ्रांस। अब अगर आपके सामने ये ऐसा कुछ मैचिंग द पेयर आए पोर्ट्स विद कंट्रीज तो सरप्राइज मत हो, ठीक है। नाउ कमिंग टू ऑब्जेक्टिव, अच्छा ऑब्जेक्टिव तो ठीक है, दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ प्री, ठीक है। नाउ फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन थर्ड समिट विच इज हेल्ड इन पपुआ न्यू गिनी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, दैट इज आल्सो द कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव लेड बाय इंडिया। इंडिया का ये जो है वो ब्रेन चाइल्ड एक तरीके से है कि इंडिया चाहता था कि ऐसे कोई समिट बने जिसमें ये जो छोटी कंट्रीज हैं, पैसिफिक कंट्रीज हैं, मतलब दैट्स द पैसिफिक आइलैंड स्मॉल कंट्रीज, ठीक है, आइलैंड नेशन जो है, ठीक है। तो उसकी थर्ड समिट, एक समिट जयपुर में हो चुकी है इंडिया में, ठीक है। सो द इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज वाज ऑनर्ड विद द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू अवार्ड, ठीक है, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द पपुआ न्यू गिनी। एंड द समिट वाज हेल्ड इन पपुआ न्यू गिनी, मॉरिस बाई जो पोर्ट है वहां पर हुई थी, को चेयर्ड बाय इंडिया एंड पपुआ न्यू गिनी, ठीक है। थर्ड पिपिक समिट थी और इसी समिट में जो मैंने बताया आपको कि जो बुक थी वो गिफ्ट की गई थी, ठीक है, इसलिए दैट्स इंपॉर्टेंट। नाउ अब इसमें देख लेते हैं, देखो ये है दैट इज द पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, ठीक है। तो पीआईसी कंट्री है, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, दीज आर द पार्ट ऑफ ओशियानिक कॉन्टिनेंट, ठीक है, दैट्स डिवाइडेड इनटू, देखो ये पलाऊ, आप जब इसको जूम करके देखोगे, जब आपको शीट मिल जाएगी तो आप देख लेना, या फिर आपके पास जो आपके पास मैप बुक होगी उसमें देखना कि ये जो रीजन है ओशियाना का, तो दैट इज द पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज एज वेल एज दिस इज डिवाइडेड इनटू मेजर सब पार्ट आल्सो, सब पॉलिटिकल रीजन लाइक माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, तो पलाऊ है, किरिबाती, तवलू, ठीक है, कुक आइलैंड, वनुवतु, तो ये सारी कंट्रीज के नाम अगर नहीं सुने हो तो अब सुनना चालू कर दो, ठीक है, पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि ये सब अब फोरम डेवलप हो रही है, इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, तो यू शुड अंडरस्टैंड द प्लेस वेयर दे बिलोंग टू, ठीक है। तो माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, ठीक है, तो इनकी मैपिंग कर लेना एक बार कि कौन कौन सी कंट्रीज किसका पार्ट है, ठीक है। सो दीज आर द पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, क्लियर, आइलैंड कंट्रीज हैं ये, Indo-Pacific island country. So this now about this forum, this is the forum. This is a major initiative launched under the India's Act East policy. ठीक है, to interact, to enhance interaction, to enhance the trade and financial relations with the स्मॉल आइलैंड कंट्रीज, ठीक है। तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन भी रहा है, भी देखेंगे कि इंडिया ने क्या क्या करवाया है वहां पर और आगे क्या कमिटमेंट्स हैं। सो इसमें कौन कौन सी मेजर कंट्रीज है, कुक आइलैंड, फिजी, किराबाती, तो जितनी कंट्रीज दे रखी हैं एटलीस्ट इन कंट्रीज को ढूंढ कर मार्क कर लेना अपने मैप बुक में, ठीक है। सो नाउ इट वाज लॉन्च इन 2014 and the first FABIC summit was held in Fiji, the second summit held in Jaipur, ठीक है। there's no summit held in India, so that would be the wrong statement, ठीक है, FABIC summit के बारे में, राइट। सो जो द फॉलोइंग की स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट FABIC summit, राइट, तो कर लोगे, ठीक है, क्योंकि अभी समिट ही 3 हुई है, तो दैट्स वेरी इजी टू लर्न अबाउट दैट। नाउ ऑब्जेक्टिव टू एनहांस इंडियाज रिलेशन विद द PICs, ठीक। सो इंडिया स्टैंड विद PIC, तो इंडिया स्टैंड्स विद द सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड of all countries, that's why this proposed the major the involvement of major countries like Quad countries, ठीक है, तो involved with the development of these nation islands, ठीक है, क्योंकि that's on the verge of the downing down because of the impact of the climate change also, right? Now that's why, so in line, leaders from the Quad nations have announced plans to implement the open radio access network, because that's very difficult to place these this radio access network there. So this first initiated in the Palau, पहली बार पलाऊ में स्टार्ट किया है और धीरे धीरे बाकी सब आइलैंड नेशन में भी स्टैब्लिश करेंगे। रेडियो एक्सेस नेटवर्क इज एक्चुअली द की पार्ट ऑफ द मोबाइल नेटवर्क सिस्टम। तो जो मोबाइल नेटवर्क सिस्टम जो भी बीटेक किए होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको पता होगा कि रेडियो एक्सेस नेटवर्क का इंपॉर्टेंस क्या है रिगार्डिंग द टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। तो डिवाइसेस को स्टैब्लिश करना है, राइट। सो इट कंप्राइजेस एंटीना एंड ऑल, ठीक है। तो एक बार ये देख लेना। ओरेन यूजेस सॉफ्टवेयर टू मेक हार्डवेयर मैन्युफैक्चर, तो ये जो इसका सिग्निफिकेंस है दैट इज this on the basis of that to improve the connectivity of those nations, ठीक है। So India and other Quad nations are initiating to put the radio open access network there, clear? So that is the initiative. 12-point formula is presented by our Indian Prime Minister. These are the point to development program to provide that belongs to the healthcare, क्लीन एनर्जी, साइबर स्पेस एंड ऑल। 12 पॉइंट फॉर्मूला, इसमें डिटेल में आपको नहीं जाना है, ठीक है। केवल 12 पॉइंट फॉर्मूला देख लेना कि 12 पॉइंट फॉर्मूला जो है दैट डील्स विद मल्टीपल डायमेंशन, ठीक है, हेल्थ केयर से साइबर स्पेस, क्लीन एनर्जी। तो ये पॉइंट फॉर्मूला दिया गया जिससे कि इंडियन गवर्नमेंट एंड अदर कंट्रीज which India proposed to become the part of the FIPIC,
जैसे क्वाड के नेशंस हैं, तो इंडिया पुश कर रहा है कि इन सबको मिलके इन नेशंस को डेवलप करना चाहिए, ठीक है, दैट्स विद रिस्पेक्ट टू द डिजास्टर मैनेजमेंट आल्सो, ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ दैट, द हेल्थ केयर एंड ऑल, ठीक है। सो इंडिया, व्हाट Indian projects there, the convention center was made in Palau, then waste management project is also done, going on in Narau, and the seeds for cyclone affected farmers in Fiji, then solar light project in Kiribati it's working on, and the sustainable coastal and ocean research institute in Fiji that was established as a branch of the IMD also, ठीक है। तो ये connectivity provide करने के लिए, right। दूसरा यहाँ पर आएंगे ये थिरुकुरल बुक, ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक्चुअली ये लॉन्च की थी, जो कि जो नेटिव लैंग्वेज है पलाऊ पपुआ न्यू गिनी की क्या है, दैट इज टोक पेसिन, ठीक है। टोक पेसिन में इसको ट्रांसलेट किया गया, तमिल में थी, टोक पेसिन में इसको ट्रांसलेट किया गया था और वो लॉन्च हुई वहां पर। कौन सी बुक? थिरुकुरल, ठीक है। ऑथर दैट इज थिरुवल्लुवर, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा समझ जाओगे ना कि क्यों पूछा गया, और ऐसे ही क्वेश्चन फाइंड आउट करने स्टैटिक, ठीक है, विद दैट रिलेट्स टू द करंट अफेयर। क्लियर? यहां तक सबको समझ में आया सब कुछ? ठीक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is the World Environment Day. Why World Environment Day we are discussing? क्योंकि हर साल होता है, इस बार क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं ये भी समझना है, ठीक है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस तब समझेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे न्यूज़पेपर, तो हम इसलिए पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं था कि लास्ट ईयर इंपॉर्टेंट हो और नेक्स्ट ईयर भी इंपॉर्टेंट हो, लेकिन इस साल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज द 15th एनिवर्सरी। क्लियर? तो जब भी 25th एनिवर्सरी हो, 50th हो, 75 हो, 100th हो, या कोई स्कीम पोस्टपोन की जा रही हो या कोई स्कीम फिनिश हो गई है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो सारी स्कीम हमको पढ़नी है, ठीक है। सो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 5th June, ठीक। सो व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस ईयर? एनीबॉडी, एनी आइडिया? नहीं, ठीक है। सो ऑन द 5th एनिवर्सरी ऑफ दिस सिग्निफिकेंट डे, द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है, तो मिनिस्ट्री कौन सी होगी? पावर, ठीक है। सो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी and the collaborative labeling and appliance standard program, ठीक, that is the NGO of USA, ठीक, that organize a conference on consumer centric approaches for e-cooking transition, ठीक है। तो अब ई कुकिंग की तरफ ट्रांजिशन करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, राइट। तो द ई कुकिंग, नाउ जब एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ोगे और साइंस सेंटर, तो ई कुकिंग को ध्यान रखना कि ई कुकिंग का पूरा टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ के जाना है, ठीक है। सो द कॉन्फ्रेंस एम टू एक्सेलरेट द डिप्लॉयमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंट, क्लीन एंड अफोर्डेबल ई कुकिंग सॉल्यूशंस इन इंडिया, राइट। तो अभी जो भी कॉम्प्लिकेशंस है विद रिस्पेक्ट टू द डिवाइसेस व्हिच आर हार्मफुल टू द हेल्थ आल्सो, तो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट ई कुकिंग ट्रांजिशन। सो की हाइलाइट्स क्या है? तो यूएन असेंबली एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑन 5 जून 1972। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आपने सुना होगा 1972, ठीक है। तो ऑन द सेम डे दैट इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाज डिक्लेयर्ड। सो इंडिया होस्टेड द 20th लास्ट एनवायरनमेंट डे, दैट इज 2018 45th celebration in India, and the theme was beat plastic pollution. And this year, solution to the plastic pollution is the theme this year, okay? So now the year 2023 World Environment Day is hosted by Cote d'Ivoire in partnership with the Netherlands, okay? Now theme क्या थी? Solution to plastic pollution, focus on solution to plastic pollution under the campaign Beat Plastic Pollution, okay? This year the campaign was also launched. So the Bureau of Energy Efficiency is the agency of the Government of India under the Ministry of Power, created in March 2002. Objective or the rationale behind the establishment of this organization is to encourage the efficient use of energy in India, means transition from the fossil fuel to reduce the pollution also, and to collaborate with the other ministries also regarding the use of energy, ठीक है। So that provides the solutions to the various ministry which deals with the execution of energy or the application of energy, right? So the renewable energy should be promoted. That's the target of objective of this forum, right? Now there are some supplementary material given to you so that you can read that, okay? Now state of world population report, UNFPA, United Nations Population Fund, right? So this is the organization, this is the एजेंसी ऑफ यूएन। तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड देखने में तो यूएनपीएफ लग रहा है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म क्या यूज होता है? यूएनएफपीए। व्हाई? बिकॉज इट वाज रीनेम्ड एज यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। पहले नाम क्या था? यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। तो नाम चेंज हो गया, लेकिन
शॉर्ट फॉर्म इतना फेमस हो गया था कि वही चल रहा है, right? So officially भी that is the UNFPA, right? That releases the state of world population report which state that India will overtake China. So according to the United Nations now this agency which is the largest population or the most populous country in the world, India, ठीक है, not China, ठीक है, according to this agency, ठीक है, जुलाई तक कहा था और अभी तक ये माना गया है कि इंडिया overtook China, ठीक है. So this is the prediction तो annually which covers, क्योंकि अभी तक सेंसस नहीं हुआ है इंडिया में, ठीक है, तो this is not completely authenticated but if it is the context which is given, ठीक है, अगर UNFPA context मिलता है आपको तो according to that India is the most populous country, right? So key highlights क्या रिपोर्ट के, देखो इंडिया will surpass China, ठीक है, बहुत माइनर डिफरेंस है, हो सकता है चाइना ओवरटेक कर ले जल्दी, राइट, कोई इशू नहीं है. तो अब यहाँ पर देखो 50 to 65 68%, 7% would be 65 plus the TFR total fertility rate. Do you have idea about that total fertility rate? ठीक है, वो क्या है 2.0, right? Life expectancy 72.5 years would be, ठीक. Now तो key highlights क्या है? That's a population estimation. 25% of India's population in the age group 0 to 14 years. तो एक बार ये जरूरी नहीं कि सब याद रखो, लेकिन जो extreme points हैं वो आपको takeaways लेने हैं यहाँ से, ठीक है. That's like for example that's 142.86 crore and 142.56 crore, ठीक है. तो लगभग कुछ approximately 30 lakhs का डिफरेंस है, ठीक है, माइनर डिफरेंस है, जैसे चाइना को इंडिया ने ओवरटेक किया. सो इंडिया विल हैव 9 lakhs more people than its Asian neighbor. So the top country would be India, then China, then third country would be USA, right? So one more important point here, that according to UNFPA, that's population growth in both India and China. Population is growing, but the growth rate is, ठीक है, डिफरेंस पता है ना, तो याद रखना, ट्रैप नहीं होना, ठीक है. Now coming to this, growth rate declining but the number of persons increasing, ठीक है, but the growth is declining, ठीक है, growth rate, right? हाँ, fertility rate, तो India, अच्छा fertility rate देखो estimated at 2, right? Now it's approximately we have at the verge of 2, ठीक है, 2 point something 1 के आसपास है इंडिया में, ठीक है. So developed regions projected a fertility rate of 1.5, less developed regions 2.4. देखो जापान is struggling for the higher fertility rate now, China is also struggling for higher fertility rate, ठीक है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर इंडियन मेल वाज प्रोजेक्टेड एज 71 and 74 फॉर फीमेल्स. तो आपको ये याद नहीं रखना है कि 71 है कि 74 है, आपको याद रखना है दैट्स द, यस, वेरी गुड. सो दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न अबाउट द थिंग. वरना क्या होगा, कुछ दिन बाद 8-10 क्लास करने के बाद क्लास में आओगे नहीं, क्योंकि सर इतना फैक्ट पढ़ा रहे थे, याद कैसे करेंगे. तो इतना फैक्ट केवल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है. यू हैव टू एनालाइज दोस फैक्ट इन सच अ वे सो दैट यू कैन फाइंड आउट दैट whether male has higher life expectancy or female, clear? So this is, you have to take in this way. 70 71 74 सब 4, तो मेरे से पूछोगे ना 6 महीने बाद तो मैं भी नहीं बता, right? तो इतना डेटा कैसे याद रख पाओ. See, so the average life expectancy for Indian male projected as 71 and 74 for female. The female has higher expectancy, life expectancy, ठीक है. So मेल आदतें सुधार लो वरना और कम होता जाएगा, ठीक है. 71 की कम है ना, ठीक है, फीमेल से, फीमेल की ज्यादा है, ठीक है. तो मेल को अपने हैबिट्स जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ानी है तो सही करनी होगी. नाउ ऑन एवरेज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर मेल्स globally was projected as 71 and 76 for female. It means that the global life expectancy is higher than the life expectancy in India, clear? Now so for developed region that is the highest of all life. तो अगर कंपेयर करें ना डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड, तो डेवलप्ड में फॉर लेस डेवलप्ड एजेस फॉर 74 मेल 74 फॉर फीमेल्स. तो एक बार ये सब डेटा ऐसे ही एनालाइज करना है आपको. जेंडर राइट्स, तो लगभग 18% ऑफ वीमेन आर रिपोर्टेड विद वायलेंस बाय द इंटीमेट पार्टनर्स, ठीक है, तो ये भी एक है. नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ कंसंट्रेशन, तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ जो कंसंट्रेशन दैट इज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान एंड ऑल, ठीक है. एंड मोर देन हाफ ऑफ द प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन ग्लोबल पॉपुलेशन, ठीक है, स्टूडेंट समझ में आया, मोर देन हाफ ऑफ द प्रोजेक्टेड इंक्रीज, जितना भी पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, ठीक है, उसमें 50% से भी ज्यादा टू 2050 will be concentrated in 8 countries only. That's India is the part of that. clear? So याद रखना है कि इंडिया उसका पार्ट है कि नहीं, वहाँ पे सबसे ज्यादा ग्लोबल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है. नाउ कमिंग टू द लास्ट, दैट इज अबाउट यूएनएफपीए, ठीक है. सो इट इज द सब्सिडरी ऑर्गेन ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है. तो जो ऑर्गेन्स हैं उसमें सब्सिडरी ऑर्गेन्स यानी कि एजेंसी है. दैट ऑर्गेन क्या है? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. हाउ मेनी ऑर्गेन्स आर देयर?
हाँ, वन इज डिसफंक्शनल, ठीक है। सो टोटल 6 है, लेकिन एक डिसफंक्शनल है। तो जो यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है उसका सब्सिडरी है, उसकी एजेंसी है, कौन सी? इट्स यूएनएफपीए, ठीक है। एंड इट वाज एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड 1967। ओल्ड नेम क्या था? यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी, दैट इज व्हाई इट इज यूएनएफपीए, ठीक है। दैट रिलीज दैट रिपोर्ट। और फंड, इट्स गेटिंग फंड, देखो फंड के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट आ सकता है, और ये ऐसे क्वेश्चन आए हैं PYQs में, ठीक है। तो वो पढ़े, जिसमें पढ़ा होगा समझ में आ रहा होगा उसको कि इट इज बीइंग फंड बाय द यूएन बजट इटसेल्फ, ठीक है। ऑल द एजेंसीज आर नॉट बीइंग फंड बाय द यूएन बजट, ठीक है, बट यूएनएफपीए इज फंडेड बाय यूएन बजट एज वेल एज, देखो यूएन बजट से है कि नहीं हमको ये जानना है। इसके अलावा तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसीज हैं, डोनर ऑर्गेनाइजेशन है, दैट्स ऑलवेज देयर, वरना फंड कहाँ से आएगा, ठीक है। सो इंस्टेड इट्स एंटायरली सपोर्टेड बाय वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ डोनर ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। सो इट एक्चुअली डायरेक्टली, अब देखो यहाँ पर इसलिए पॉइंट मेंशन किया गया जिससे कि आपका रिवीजन हो सके कि सस्टेनेबल गोल 3 डील्स विद द हेल्थ, 4th डील्स विद द education, and 5th deals with the, so that's all about today's one, right? So are you getting the point now कि how to read the current affairs, ठीक है। तो इसी तरीके से अब आगे जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे और उनमें फाइंड आउट करेंगे कि हमें कैसे स्टैटिक से कनेक्ट करना है और कौन कौन से जो फैक्चुअल टेक अवेज हैं, वी विल हैव टू टेक दैट, राइट। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।